So hi guys, I'm Parampreet Singh. Yes, I'll tell you. So, um, as many of you know that I have been taking Python and machine learning sessions this year and from last year only. So, like I'm taking some Python revision sessions mainly this term, and the two sessions, OPP revision sessions, these two sessions are like collaborated with GIR and Kanha House. Okay, so I would like to thank them for collaborating with me and helping a lot of students. And like this is like a two session series. Okay, for OPP2 revision. First session we have done yesterday. उसमें we have covered everything from week 1 to week 8, which is the overall syllabus for OPP2. We have covered everything in detail, so you can like watch that session in my watch that recording of the session in my YouTube channel. So this is my YouTube channel, just search Parampreet Singh or Param3021. This is the session, Python 24. Okay, Python OPP2 revision. And today we will gonna like do some questions for OPP2. All right, some new questions, some OPP questions, some mock questions as well, and the recording of my session will be uploaded in my YouTube channel. Thanks Tanuj for sharing. So you guys can subscribe to the channel and turn on the notifications. All right, and just one thing, अगर आपको quick recap करना है for all the concepts, watch my latest session, 24th one, this Python 24. If you want to if you want you want to do certain concept in deep, then this is my Python playlist. This is my Python playlist. आपको जो भी टॉपिक करना है, I have the all the videos here for the complete Python course. You can watch that specific video, specific session video, and आपको जो है पूरी clarity हो जाएगी regarding that topic. Okay, so this is it, and yes, this is the link for the playlist. And I'm recording this session, and I will upload the recording of this session after it ends in my YouTube channel itself. All right, so let's start. So as I said, today we will do the questions and all. So questions करते time ही I will share some tips and like I will show you that how I am approaching the problem. Okay, so just follow those tips and just like observe that how I am doing the question. Okay, मैं कैसे question देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, I am proceeding to the code and all. So वैसे ही you do yourself in the OPP and आपको कोई confusion नहीं होगी. बहुत सारे लोगों को confusion होते हैं कि हम dictionary यूज़ करेंगे, list यूज़ करेंगे, क्या करेंगे questions में. Okay, वो सब भी मैं clear कर दूंगा आज. Okay, so we have like around 13 new questions. These are the new questions itself. So all right, let me make the PDF of it. PDF and yes. Okay, so these are like some new questions. Okay, let me keep it here. 13 new questions are here. Okay, ये पूरे file handling के questions हैं. We will do some of them, and rest I will share with you all, so that like after this session you can practice with those questions. And then we have these questions. These are the OPP questions. Okay, so OPP2, you guys got like 3 mock, right? OPP2 mock 1, mock 2, mock 3. So इसमें सारे questions हैं. We will do some of them also, some of these questions. And then as like most of you know that Geer and Saranda are doing like Python practice hackathon. It is like almost 3 to 4 days of hackathon. 2 दिन हो गए and 2 days are still left, that is today and tomorrow. So these are the questions of the previous 2 days, the yesterday and the day before yesterday. So ये सारे वो questions हैं. हम इनमें से भी कुछ questions जो है in 2-3 questions we will do from these as well. All right, so we will cover like
a wide range of questions today, and then like I hope after this session आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी कि ओपीपी में कैसे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे एंड हाउ मच लाइक यू विल बी एबल टू इजीली डू. हैकाथॉन लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा. The like WhatsApp group link I'll share. Just give me a second. Okay, just 1 second. Okay, let me join the meet. And how many of you like feel that you are prepared for OPP too? Yeah. All right. I have shared the group link. Yes. Okay. Abhi, is it fine? I hope अभी कोई नॉइस नहीं आ रही होगी. All right. I have shared the group link. You can join this group and आपको यहाँ पे hackathon के link मिल जाएंगे. Okay. Make sure you guys like attend these hackathons live and उस time frame में सारे questions करने का try करो. Even if you are able to do 50% of them, that means you will be easily pass the OPP too. Okay. All right. So regarding the yes OPP के लिए ओके मैंने ऑलरेडी पूछ लिया. काफ़ी लोग अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं. दैट इज फाइन. And what about others, like those who have watched my those who have attended my session yesterday? How you guys are feeling? Like, are you feeling prepared, somewhat prepared, or nothing? Okay, 60%. Okay. Don't worry, Deepak. ऑल राइट. सो डोंट वरी, कल हमने कंसेप्ट कवर करे. आई होप आप लोगों के बेसिक्स तो क्लियर होंगे. आई एम टेक एज्यूमिंग दिस. एंड आफ्टर दैट अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो हमें काफ़ी ज़्यादा लाइक इजी लगेगा. सब कुछ ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं होगा. ऑल राइट. सो यस, दीज आर ऑल द थिंग्स. Okay, so let's start. Just one thing. Okay. सो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस उसमें से कर लेते हैं इन ओपीपी टू मॉक 1, 2 and 3. ओके, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आप लोगों को करना है इन ओपीपी टू मॉक क्वेश्चंस? लाइक वी हैव 3 मॉक्स, राइट? मॉक 1, मॉक 2, मॉक 3. कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन डू यू गाइस हैव? एनीथिंग जो भी आपको लग रहा हो कि नहीं लाइक क्लियर नहीं है या समझ नहीं आया, या वी कैन टेक एनी रैंडम क्वेश्चन. मॉक 2, क्वेश्चन 3. Okay, Ashutosh, can you share that question number with the mock number here? So mock 2, question 3. Um, Let me find. Okay, this one. Okay, you are given a list of dictionaries where. All right. Define a function in this performers. Okay. ठीक है. So then we have like some CSV questions as well. Okay. इसके लिए let me open. We will do this as well. उससे पहले थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं. लेट्स से ओके, मॉक 1 से
इनफैक्ट ओके, कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो बेटर है. एंड गाइस मेक श्योर लाइक यू आर इंटरैक्टिंग थ्रू आउट द सेशन. इफ इट वुड बी बेटर अगर कोई, इफ एनीबडी कैन स्पीक. सो मॉक 1 क्वेश्चन 3. ओके, क्वेश्चन 3. This one. Okay, goals. I don't have that data exactly, so I don't know how will I able to pursue. You're given a list of dictionaries, matches where each element. Okay, so one of the entries given. Get leaderboard that takes a matches as input and return the leaderboard. Okay, so हमारे पास ये है एंड हमें एक लीडर बोर्ड जनरेट करना है. ये तो लाइक आई डोंट हैव दैट डेटा, आई डोंट नो मैं कैसे परस्यू आगे, लाइक हाउ कैन आई प्रोसीड. ओके, ओके, आई थिंक कोई और डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं जो हम ऐसे भी कर पाए. सो द नंबर ऑफ occurrence. ओके, ये वाला कर लेते हैं, लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन और समथिंग. लीडर बोर्ड क्वेश्चन. ओके, सो हैकाथॉन में भी आया था, डैट वुड बी बेटर. अगर हैकाथॉन में आया था तो मे बी डेटा होगा. ओके, सो काफ़ी टाइम हो रहा है, सो एक एक करके क्वेश्चन कर लेते हैं. थोड़ा पहले ये वाले कर लेते हैं. ओके, जस्ट 5 बेसिक क्वेश्चन. फर्स्ट इज दिस परसेंटेज इंक्रीज. लेट मी कॉपी इट हियर and in the main.py. Okay. So the font size is clear, right? Okay. So the first question is percentage increase. Percent. Okay. So percentage increase. It basically it is taking two numbers. एक जो पहले का नंबर था एंड एक सम न्यू नंबर, एंड वी वांट टू रिटर्न द हाउ मच परसेंट इट हैज लाइक इंक्रीज. सो इसका लाइक बेसिक फार्मूला होता है. दे हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी फार्मूला एंड ऑल. ओके, डेटा है, दैट इज फाइन, देन वी विल डू दिस क्वेश्चन. ओके, so after this we will do that team goal question. Okay, so now percentage increase. The formula of percentage increase is, if I like write percent increase, it is basically जो भी new value what we have, a new minus the original value. So original divided by the original value. Yes, so this basically gives us the increase in like decimal values, and बाकी आप इसको percentage में convert कर सकते हो. So it is like basic formula जो kind of basic understanding है. अगर आप normally देखोगे तो मतलब 50 से 75 हो रहा है. So 50 and there is a difference of 25, right? 50 in 50 and 75, and 25 is the 50% of 50. Okay, so this means कि 50% का increase हो रहा है. Yes, new आप multiply बाद में करो, that is up to us. Okay, so the percentage increase is this, like okay, if I go for increase, so increase हमारा इतना हो रहा है. Okay, then the percentage increase will be increase into 100. So this will be our answer if I'm doing it right. Yes, this session is being recorded, and now let's test it for the values also. 50, 75 percentage increase, and here 80, 100. All right, I'll add a print statement also यहाँ पे, and there print. If we run it, all right, so I'm getting the answer. So yes, ये तो बहुत basic question था. And yes, we have like the format जो हम उसी format में भी we will do the questions की data pre processing and all. Okay,
सो अभी वी विल डू दिस फर्स्ट इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, जो 5 आपको फंक्शंस मिलेंगे, कुछ 5 to 6 फंक्शंस इन वन क्वेश्चन, एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट द कोड फॉर ऑल ऑफ द फंक्शंस. ओके, सो ये हमारा एक तो हो गया फंक्शन. वी हैव लाइक वेरियस फंक्शंस हियर. देन लेट्स डू द नेक्स्ट वन. सो ओके, इज दिस क्लियर द क्वेश्चन? इसमें मेनली द फॉर्मूला इज द मेन थिंग. इफ यू नो द फॉर्मूला एंड द फॉर्मूला Yes, यू sir, it कैन. was easy. ओके, अगर आप फॉर्मूला बना सकते हो देन दैट इज इजी. ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 डिजिट इवन. सो हमारे पास एक नंबर है, हमें वो देखना है कि नंबर 10 डिजिट का है एंड इवन है या नहीं. ऑलराइट, सो देर आर टू थिंग्स वी हैव टू चेक. सो फर्स्ट एक चीज़ चेक कर लेते हैं, इज 10 डिजिट. ओके, जस्ट सी लाइक हाउ आई एम डूइंग. सो दो पार्ट्स में है हमारा क्वेश्चन. अगर आप देखो, एक नंबर हमारा 10 डिजिट का होना चाहिए एंड इवन नंबर होना चाहिए. तो मैं दोनों को सेपरेटली आई एम कंप्यूटिंग. ओके, सो इस 10 डिजिट हम कैसे चेक करेंगे कि नंबर कितने डिजिट्स का है? देर आर मेनली टू वेज. एक इजी वे तो आप सबको पता होगा, यस, दिस वन, विच इज नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो. ठीक है, सो वी विल गेट द नंबर इन स्ट्रिंग एंड उसकी हम लेंथ देख लेंगे. ओके, सो लेंथ विल टेल अस हाउ मेनी डिजिट्स डू वी हैव, एंड वी आर लाइक कंसिडरिंग कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है. ओके, सो अभी डेसिमल वैल्यू का भी वी विल सी हाउ. ओके, वेल, हम कंसिडर कर रहे हैं कि इट इज़ एन इंटीजर, नॉट रैशनल नंबर ऑल्सो. ओके, सो इस 10 डिजिट का हो गया. नाउ इज इवन नंबर. is even number. How can we check whether a number is even or not? बहुत बेसिक सा है. यस, n mod 2, ये तो लाइक सबको याद ही हो गया होगा. वेल, इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है? दिस पर्टिकुलर थिंग what we are doing is here. Anybody? If any. Checking if the remainder is zero or not. Yes, so not basically, yeah, remainder is zero or not, and we can check by only the last digit as well, right? हम लास्ट डिजिट से भी वी कैन वेरीफाई वेदर दैट नंबर इज इवन और नॉट, है ना. सो अगर हम सिर्फ लास्ट डिजिट लेके उसका भी रिमाइंडर ले लें, उसको 2 से मॉड्यूलो करके, तब भी हमें मिल जाएगा. एंड अगर हम पूरी डिजिट का करना चाहें वैसे भी हम कर सकते हैं. एंड डोंट वरी, मॉड्यूलो वोंट टेक लाइक मच टाइम. अगर हमारा नंबर बड़ा होगा, इट ओनली टेक द कांस्टेंट टाइम. ओके, सो इट इज़ फाइन. सो हमारे पास ओके इस 10 डिजिट, इस पे एक चीज़ रह गई. हमने लेंथ तो कंप्यूट कर ली, बट वी हैव टू चेक इट फॉर 10, राइट? सो इक्वल टू 10. तो मेरे पास ये दोनों चीज़ें हो गई. नाउ बेसिक एक इफ़ कंडीशन लगा देंगे. इफ़ इज 10 डिजिट एंड इज इवन नम, देन वी विल रिटर्न ट्रू, else we will return false. Right? Am I doing it right? अगर आप लोगों को लग रहा है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, सो यू गाइस कैन इंटरप्ट मी. लेट्स जस्ट दिस टेस्ट केसेस. यस, हम वहाँ पे भी जाएंगे. अभी हम बेसिक सा कर रहे हैं. ओके, आई विल कवर द एज केसेस एज वेल. सो अभी तो इतना हो गया. इफ़ आई रन दिस, सो फर्स्ट वाले के लिए आई शुड गेट फॉल्स क्योंकि ये इवन नहीं है. नेक्स्ट इज इवन, एंड एक और हम नॉर्मल कर लेते हैं 10 डिजिट वाले का चेक. 1 2 2. सो इज दिस नंबर इवन? ये राइट, दिस नंबर इज इवन, बट क्या ये 10 डिजिट्स का है? नो. सो वी शुड गेट फॉल्स, राइट? सो यस, वी आर गेटिंग फॉल्स. सो इतना सबको क्लियर है? बहुत बेसिक सा. ओके, now there are some edge cases. Edge cases mainly, n0 is not, then also is not equal to 0. Try for 0 0 0 0 0. Yes, so see 0 पे एक चीज़ है कि 0 if we have
डजेंट मैटर कितने ज़्यादा जीरोज होंगे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल जीरो ओनली. ओके, तो वी विल गेट द फॉल्स ओनली. अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ भी, इफ आई नॉर्मली प्रिंट दिस 0 0 वैल्यू, so that will be considered as a single zero. Okay, तो यहाँ पे लाइक नॉर्मल जीरो के साथ ऑपरेशन करो या n नंबर ऑफ जीरोस के साथ ऑपरेशन करो, वी विल गेट द सेम आंसर, राइट. कुछ डिफरेंट आंसर नहीं आएगा. so that's why single zero or any number digit zero will result same. so ये तो हो गया नॉर्मल एक केसेस. नाउ लेट्स गो फॉर एज केसेस. लेट्स से मैं एक नंबर लेता हूँ इस 10 डिजिट में, 1290. Okay, first tell me, is this a 10 digit number? Yes. Is this an even number? Yes. Okay. Now I'll add minus. Okay. अभी भी is this a 10 digit number? Yes. And is it like an even number? कोई इसमें confusion नहीं है, right? So it should give us true, है ना, जितना we know. But ये तो हमें false दे रहा है. So the thing is, जब हम नंबर की यहाँ पे लेंथ मैच कर रहे हैं, for the even it is giving us true. Okay, for the even it is giving true if I even like print it. Okay, so थोड़ा हो जाएगा overlap, don't worry. So normally मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, for the even it is giving us true, but for the 10 digit it is not, it is giving us false. Yes, minus is also being considered as a decimal. So हम इसको tackle कैसे कर सकते हैं? We can take absolute of n first before Okay, considering it as a string. yes, absolute of n, है ना, बहुत बेसिक सी चीज़ है. आप एब्सोल्यूट ऑफ एन लो या आप कंडीशन के साथ -1 से मल्टीप्लाई करो. बहुत सारी अप्रोचेज हैं, आप कुछ भी कर सकते हो. अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, आई शुड गेट ट्रू, एंड वही मेरे पास ट्रू आ रहा है. ओके, नाउ दिस इज वर्किंग. नाउ एक और एज केस आई हैव एडेड, डेसिमल. वेल यहाँ पे डेसिमल का कहीं है नहीं, इंट इज देयर मेनली. ओके, अगर लाइक लेट से अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं, एंड डू वी यूज लेन स्ट्रिंग एबीएस? यस, आप पैसे भी कर सकते हो, आप यहाँ पे भी एबीएस कर सकते हो, बट मैंने पहले एन की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ली. ओके, आप कुछ भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू. ओके, नाउ टेल मी व्हाट अबाउट दिस नंबर. इज दिस अ 10 डिजिट नंबर? अगर हम सिर्फ इंटीजर पार्ट को देखें तो. ओके, इज दिस एन इवन नंबर? ओके, सो इसका भी आंसर ट्रू होना चाहिए, राइट? इफ आई रन इट आई एम गेटिंग फॉल्स. कैन यू टेल मी लाइक मुझे फॉल्स क्यों आ रहा है? हाँ, स्ट्रिंग में जो है 10 डिजिट्स नहीं हो पाएंगी, इट विल बी ऑफ 14 डिजिट्स. 3 डिजिट्स तो ये वाली ऐड हो जाएंगी, एंड डेसिमल विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ, या. सो बेसिक्स, we can do one thing before taking the absolute value, take the integer of it. okay, ये मैंने एक और एज केस ऐड कर दिया. वेल ऐसा नहीं है क्योंकि हम इंटीजर ही डाल रहे हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि हमारे पास प्रॉपर एक इंटीजर ही आ रहा है. वी कैन हैंडल इट बाय दिस. ऑल राइट, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल. ऑल राइट, नाउ इसको थोड़ा सा अब हम रीफैक्टर करते हैं. रीफैक्टर मीन्स थोड़ा सा कोड हम और रीडेबल एंड और थोड़ा छोटा बनाते हैं. ओके, सो दिस इज 10 डिजिट. इसकी हमारे पास वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं? ट्रू और फॉल्स, राइट? दिस पर्टिकुलर लाइन 16 की ट्रू और फॉल्स में आ सकती है आंसर, है ना. सेम फॉर द लाइन नंबर 17. हमारे पास और कोई वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि वी आर चेकिंग विद एन इक्वालिटी ऑपरेटर. तो हमारे पास आंसर या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा. तो हमें क्या करना है, हमें ट्रू तभी रिटर्न करना है जब दोनों ट्रू हो, है ना. एंड दोनों, अगर ये भी ट्रू है एंड ये भी ट्रू है, तो इसका मतलब ये पूरे वैल्यू ट्रू हो रही है, राइट? एम आई राइट?
अगर Yes. दोनों चीज़ें ट्रू हैं एंड बीच में एंड मैंने डाल दिया तो दोनों ट्रू है। अगर मान लो नंबर 10 डिजिट का नहीं है विच मीन्स दिस इज फॉल्स एंड दिस इज ट्रू, देन इस पूरे का क्या रिजल्ट आएगा, इज दिस इवेल्युएटेड टू ट्रू और फॉल्स? अगर 10 False. डिजिट फॉल्स है, यस, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा। तो मैं इसको सिंपल इतना हटा के, ओके, आई एम रिमूविंग दीज 3 लाइन्स, आई एम रिमूविंग दिस इफ, आई एम जस्ट राइटिंग रिटर्न, ओके, ये भी वर्क करेगा। आई विल शो यू। सो इफ आई रन दिस, यू कैन सी फर्स्ट के लिए वी आर गेटिंग फॉल्स, ओके, इसमें फॉल्स क्यों आ रहा है इन द फर्स्ट टेस्ट केस? Odd number. yes, this is an odd number. for second we are getting true because वो 10 डिजिट का भी है, इवन भी है। इसके लिए हमारे पास इसलिए फॉल्स है बिकॉज वी हैव लेस लाइक छोटा नंबर है, वी Digits डोंट हैव अ less 10 than डिजिट नंबर, yes, then here we are getting true and here also we are getting true, okay, so is this clear? like जो मैंने यहाँ पे करा आप लोग ये भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, आप लोग चाहो तो ये भी कर सकते हो, ओके, जस्ट मेक श्योर कि आपको जो इजी लगे आप वो करो, ओके। मैंने बस आपको एक और शॉर्ट हैंड बताया, आप चाहो तो अब इस पूरी स्ट्रिंग को हटा के लाइक वेरिएबल को हटा के डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, ओके, देन इन पूरे इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड इसको भी हैंडल करना है तो यहाँ से इसको भी हैंडल कर सकते हो, एबीएस ऑफ एंड, देन इट विल बी ऑफ ओनली 1 लाइन कोड, ओके, एक लाइन में हमारा पूरा कोड हो गया। यस, मैं आपको तीनों डॉक्यूमेंट्स आई विल शेयर द पीडीएफ ऑफ ऑल 3, ओके, आफ्टर दिस सेशन इन द रिकॉर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। आपके पास पूरा लाइक ऑलमोस्ट यू हैव 1 पॉइंट, ओके, यू हैव मोर देन 2 days, लाइक आज का भी हाफ ऑफ द डे यू हैव, नेक्स्ट डे ऑल्सो, एंड बिफोर द ओपीपी ऑल्सो यू हैव few hours, ओके। नाउ बहुत ही बेसिक था ये क्वेश्चन। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीबडी? all right, now let's move on to the next one. Let me copy it, okay, so here we have to find indices of the element. so एक लिस्ट है एंड हमारे पास एक एलिमेंट है एंड हमें उसकी इंडेक्स हमें उसका रिटर्न करना है जितने भी टाइम इट इज अकरिंग, ऑल राइट, हाउ कैन वी प्रोसीड? okay, how many of you have done this question? just raise your hand successfully, okay, 3 5 almost 6 to 7, okay, I can consider कि 10 लोगों ने करा है, okay, you can lower your hand, so ठीक है, so ज़्यादा बड़ा नहीं, ओके, नॉर्मली लेट्स से हमारे पास एक ये लिस्ट है 1 2 3 समथिंग एंड मुझे 2 का इंडेक्स चाहिए, सिर्फ एक बार इंडेक्स चाहिए, हाउ कैन आई गेट द इंडेक्स ऑफ दैट लिस्ट, ऑफ दैट 2 फ्रॉम दिस लिस्ट? मेरे पास एल नाम की लिस्ट है, We can L of run a 1. for loop for enumerate of the list. ओके, डोंट गो फॉर द एक्चुअल कोड और आउटपुट जो इस क्वेश्चन का है, मैं जितना पूछ रहा हूँ अभी बस उतना बताओ। मुझे 2 का इंडेक्स चाहिए, हाउ कैन आई गेट द इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स ऑफ 2, यस, इंडेक्स मेथड एल डॉट इंडेक्स 2, ओके, सो इट विल चेक जो भी हमारा फर्स्ट जहाँ भी 2 हमारा आएगा फर्स्ट अकरेंस पे उसका ये इंडेक्स दे देगा, ओके, सो इट विल गिव अस 1, राइट, 0 पे ये है, 1 पे ये है, बट हमें जो है यहाँ पे क्या करना है, हमें सारे इंडेक्सेस ढूंढने हैं ऑफ द एलिमेंट, ओके, सो हाउ कैन वी प्रोसीड? अब सारे इंडेक्सेस ढूंढने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक लिस्ट बना सकता हूँ इंडिसेस नाम की, ओके, इंडिसेस नाम की एक लिस्ट बना सकता हूँ और मैं क्या करूँगा, आई विल गो थ्रू द लिस्ट मेनली, मैं लिस्ट में 2-3 वे से जा सकता हूँ, आई एम प्रेफरिंग द रेंज वे, ओके, आई एम टेकिंग द लेंथ ऑफ द लिस्ट फर्स्ट, ओके, एंड आई एम गोइंग थ्रू द रेंज फॉर आई इन रेंज n और लेंथ ऑफ द l, ओके, देन मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम मैचिंग दैट एलिमेंट, आई एम मैचिंग दिस एलिमेंट जो भी मेरा इस इंडेक्स ith इंडेक्स पे एलिमेंट है, ओके, सो l of i, if l of i equals to lm,
ओके, आई एम मैचिंग कि मेरा कौन सा जो एलिमेंट है लिस्ट में, इज इट मैचिंग विद द प्रोवाइडेड एलिमेंट जिसका मुझे इंडेक्स लेना है। अगर वो मैच कर रहा है देन मैं इंडेक्सेस में उसको अपेंड कर दूंगा आई को, इंडेक्स को। ओके, आई एम नॉट अपेंडिंग द एलिमेंट, आई एम अपेंडिंग द इंडेक्स। आई पे मेरा इंडेक्स स्टोर हो रहा है। ऑल राइट, एंड देन आई विल रिटर्न इंडेक्सेस। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? ओके, सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें अभी तक जितना किया? आई होप नो। ऑल राइट, सो Uh, I have a doubt. यस। When I can use a range function and when I cannot use range function. ओके, बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको इंडेक्सेस के साथ, अगर आपको इंडेक्सेस भी चाहिए साथ में, या आपको इंडेक्सेस का यूज़ है, तब आप रेंज यूज़ करो। अगर आपको इंडेक्स का यूज़ नहीं करना, लाइक आपको जो भी आप आई में लाइक इंडेक्स स्टोर करते हो, अगर आपको वो इंडेक्सेस का काम नहीं है, चाहे आपको इंडेक्स प्रिंट करने हैं, इंडेक्स का आपको इवन ऑड चेक करना है, कुछ भी, तो आप नॉर्मली लिस्ट के थ्रू जाओ। ओके, फॉर आई इन एल कर लो। अगर आपको इंडेक्स यूज़ करना है देन फॉर आई इन रेंज ऑफ लेन ऑफ एल। ऑल राइट, बिकॉज ओके, अगर इंडेक्स का यूज नहीं करना है तो रेंज यूज नहीं करेंगे। राइट, ओके, बहुत ही बेसिक है इस पे। थैंक तो यस, ऑल राइट। कैन वी यूज एनुमरेट? यस, यू कैन यूज एनुमरेट एज वेल। आई थिंक इसका कोड भी यस one has provided, so yes, it is a list comprehension. I will show you the enumerate way as well. um okay, Excuse me, yes, I am having trouble understanding this. okay. Means Mhm. what? Is there any other alternative method? Okay, so this is the like I would say बहुत ही basic way है this one. हम क्या कर रहे हैं, हम एक इंडेक्सेस की लिस्ट बना रहे हैं, हमें जो है सारे इंडेक्स देने हैं। ओके, यू कैन सी हमें रिटर्न करनी है अ लिस्ट ऑफ इंडेक्सेस जहाँ भी एलिमेंट फाउंड हो रहा है। सो डैट मीन्स हमें एक लिस्ट रिटर्न करनी है। ओके, तो इससे वी कैन क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट फर्स्ट, देन हम एक एक एलिमेंट पे जाएंगे। ओके, हर एक एक एलिमेंट पे जाएंगे एंड वी विल चेक कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो है हमारे प्रोवाइडेड एलिमेंट से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो मैच हो रहा है देन वो एलिमेंट का जो भी इंडेक्स है, हम उस इंडेक्स को इस इंडेक्सेस वाली लिस्ट में ऐड कर रहे हैं कि हाँ ये वाला इंडेक्स हमें स्टोर करना है। ओके, दिस इज वन ऑफ द इंडेक्सेस जहाँ वो एलिमेंट हमें मिलेगा, एंड देन वी कैन सिंपली रिटर्न दोस इंडेक्सेस। Okay, sir, got it. ऑल राइट, ओके। नाउ these are the test cases. Let's see, should we get the same output? Okay, हमारे पास सेम आउटपुट आ रहा है 1 and 3 and 0 and 2. नाउ एन्यूमरेट। सी, एक तो नॉर्मल वे है कि हम ऐसे एल ऑफ आई करके भी कर सकते हैं। सेकेंड वे इज, अगर आप लोगों को एन्यूमरेट पता है या आप लोगों ने मेरा कल का सेशन अटेंड किया तो आप लोगों को पता होगा अबाउट एन्यूमरेट। ओके, मैं एन्यूमरेट पे ज़्यादा आई वोंट फोकस फॉर इंडेक्स एंड देन एलिमेंट इन एन्यूमरेट, एंड यहाँ पे मैं एल कर रहा हूँ। एन्यूमरेट बेसिकली हमें साथ में एक सीरीज ऑफ नंबर्स भी देता है। बाय डिफॉल्ट इट स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, सो 1 के लिए इट विल गिव अस 0, 2 के लिए इट विल गिव अस 1। बेसिकली हमें इंडेक्स दे रहा है। अगर मैं स्टार्ट वैल्यू कुछ प्रोवाइड करता हूँ, लेट्स से 100, तो 1 के लिए इट विल गिव मी 100, 2 के लिए इट विल गिव मी 101, एंड 3 के लिए 102, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, बाय डिफॉल्ट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो हम ऐसे भी जा सकते हैं एंड वी कैन चेक वाया लाइक दिस एज वेल। इफ एल इक्वल्स टू एलिमेंट देन हम इंडेक्स को स्टोर कर लेंगे। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द एन्यूमरेट एज वेल। बाकी लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन है, आप इसको लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में यू कैन इजीली कन्वर्ट। आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट, जस्ट दैट कन्फ्यूजन क्रिएट होगी अगर लाइक जितने लोगों के लिए लाइक थोड़ा सा मुश्किल है। सो यस, आई होप बेसिक मेथड, जो सबसे बेसिक मेथड था, ये सबको क्लियर हो गया होगा। द मेन पॉइंट इज you know like how I'm like you all are getting that how I am approaching a particular problem. अगर आपको पता चल रहा है कि how I'm approaching, मैं कैसे कैसे steps ले रहा हूँ, what I am doing, so आपको clear हो जाएगा। okay, now next
Def swap adjacent elements. This is an interesting question. So यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक टपल है एंड इस टपल के हमें एडजेसेंट एलिमेंट्स को स्वैप करना है, मतलब 1 और 2 को स्वैप करके 2 और 1 पे करना है, 3 और 4 को स्वैप करके 4 और 3 पे, एंड 5 और 6 को स्वैप करके 6 और 5 पे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, कैन वी मॉडिफाई टपल? No. नो. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है लाइक हमें एक न्यू टपल रिटर्न करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिस्ट पे पूरी मैनिपुलेशन कर सकते हैं एंड वो लिस्ट को हम टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं. एम आई राइट? रिकॉर्डिंग आपको सही मिल जाएगी. ओके, नाउ यस, सो हेयर ओके, तो हम स्वैप एडजेसेंट एलिमेंट्स का कर रहे थे. वी हैव अ टपल एंड हमें जो है टपल के एडजेसेंट एलिमेंट्स को स्वैप करना है. ओके, now to swap these adjacent elements, okay, first of all we cannot modify the tuple, so the only option we have is कि हम एक list लें and list में हम modification करें and then we convert it to tuple. Am I right? All right, then अब हम क्या कर सकते हैं, एक list बना लें या tuple. See, you have to handle edge cases, Fatima, for that. So वही edge cases we are discussing in the questions as well. ओके, आपको बेसिक एक कोड नहीं लिखना, आपको एज केसेस भी हैंडल करने हैं क्योंकि प्राइवेट टेस्ट केसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम एज केसेस होते हैं. ऑलराइट, सो मॉडिफाई इक्वल्स, मैं एक एम्प्टी लिस्ट बना लेता हूँ. ठीक है, नाउ मुझे एडजेसेंट एलिमेंट्स को स्वाइप करना है. सो हाउ कैन आई प्रोसीड? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस क्वेश्चन? ओके, काफ़ी. ऑलराइट, काफ़ी लोगों ने करा भी और काफ़ी लोगों ने नहीं भी करा. ओके, सो let's proceed now. How can we proceed further? इसके नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा? अभी आप लोगों ने 2 क्वेश्चंस देखे, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं और? ओके, एनीबॉडी? अपन एलिमेंट्स के इंडेक्सेस यूज कर सकते हैं क्या इसमें? वी कैन यूज द इंडेक्सेस क्योंकि हमें इंडेक्स लाइक हमें 2 एलिमेंट्स को स्वैप करना है, सो वी नीड दोज इंडेक्सेस एज वेल, राइट? या ओके, okay, so let's move ahead then. Just a second. All right, so just one thing. Okay, मैं स्टार्ट करता हूँ. सो हम क्या करेंगे, लिस्ट पे पहले वी विल गो थ्रू द कंप्लीट लिस्ट. ओके, और द टपल, इनफैक्ट जो हमारे पास टपल है, या मैं इसी टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ. ओके, मॉडिफाई इक्वल्स लिस्ट टी. ओके, एंड आई विल राइट मॉडिफाई हेयर, या एक छोटा सा नेम ले लेते हैं, टी रख लेता हूँ. ओके, नाउ basic swapping. Okay, so how can we swap basically the elements, like 2 elements. let's say मुझे 1 और 2 को swap करना है and 1 मेरा ith पोजीशन पे है and 2 मेरा i+1 पोजीशन पे. how can I swap them? yes, यश ने कोड भी दिया. so एक तो हमारा t of i जो हमारा करंट एलिमेंट है वो आ गया. ओके, एंड एक हमारा आ गया t ऑफ i+1, दैट इज द नेक्स्ट एलिमेंट. अब इन दोनों की वैल्यू हम इंटरचेंज करके लिखेंगे, दैट इज t ऑफ i में हम t ऑफ i+1 की वैल्यू जो है वो हम लिखेंगे. ओके, एंड t ऑफ i+1 में हम t ऑफ i की वैल्यू लिखेंगे. ओके, सो ये जो है आप कॉमा से यू कैन सेपरेट, जो ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वैल्यू है इन दिस पर्टिकुलर वेरिएबल, इन दिस पर्टिकुलर लेफ्ट हैंड साइड, सेम ये इस साइड पे जो यहाँ पे लेफ्ट वाली वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू है, वो असाइन होगी. एंड ये सेकंड एलिमेंट वी कैन से
आफ्टर द कॉमा जो ये टी ऑफ वन आई प्लस वन है, यहाँ पे ये सेकेंड वाले की वैल्यू जो है असाइन हो जाएगी। ओके, सो बेसिक, बहुत बेसिक हम स्वैपिंग कर रहे हैं अभी। डोंट वरी, आई विल गो फर्दर। आई नो दिस कोड इज नॉट राइट। अभी हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ओके, अभी इफ आई रन इट, कितने लोगों को लग रहा है कि दिस इज फाइन, दिस कोड इज फाइन? Not fine. There should be a change in the range. एरर आई गेस, यस, चेंज इन द रेंज। सो ओके, अभी मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं टपल ऑफ टी रिटर्न करता हूँ। ओके, क्योंकि मैंने टी को लिस्ट में करा था एंड आई हैव मॉडिफाइड दिस एंड देन आई एम रिटर्निंग द टपल। मैं एक टेस्ट केस चेक कर लेता हूँ, ठीक है। yes, we'll get an error which is index error out of range, list index out of range। कोई बता सकता है ये एरर हमें क्यों आ रहा होगा? हम स्वैपिंग तो कर रहे हैं। जब वो रेंज की लास्ट वैल्यू पे पहुंचेगा तो वी आर आस्किंग फॉर i+1 एज वेल, सो Yes. दैट विल बी आउट ऑफ रेंज। yes, right, you all are right। जैसे इन दिस लिस्ट जब हम 6 पे पहुंचेंगे, 6, द इंडेक्स ऑफ 6 विल बी इन आई, देन i+1 करके कोई हमारा इंडेक्स नहीं होगा एंड देयर वी विल गेट द एरर। हाउ कैन वी हैंडल इट? हम -1 तक जा सकते हैं। ओके, जिससे हम -1, 5 तक yes. जाएं, जिससे i+1 में 6 ही आए। ओके, आई में मैक्सिमम 5 की वैल्यू आएगी, लाइक आई में 5 का इंडेक्स आएगा। ओके, देन इफ आई रन इट, तो मेरे पास कुछ ये आ रहा है, बट ये तो लाइक इट इज़ इन अ डिफरेंट मैनर, राइट। इसमें अगर आप देखोगे, ये स्वैपिंग कम ये काइंड ऑफ रोटेशन हो गई है, राइट। मेरी लिस्ट से 1 2 3 4 5 6, मेरा 1 सबसे एंड में चला गया एंड 2 3 4 5 6 आगे आ गया। हाउ कैन वी फिक्स दिस? यस, सी, अभी क्या हो रहा है, जैसे 1 और 2 को स्वैप किया आई और i+1 में, ठीक है। तो मेरी लिस्ट क्या बन गई? ओके, इफ आई लाइक ओपन द वाइट बोर्ड, ड्रॉ, ऑलराइट, सो लेट मी जूम आउट। तो हमारे पास यहाँ पे ओके लिस्ट है 1 2 3 4 5 6। आई की वैल्यू मेरी है 0, जो अभी हमारी आई की वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो कोड है वो कुछ ये है, जो जो मेरा टी ऑफ आई है उस, और टी ऑफ i+1 इक्वल्स टी ऑफ i+1 कॉमा टी ऑफ आई, राइट। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे टी ऑफ i+1 मतलब मैं 2 की वैल्यू और 3 को मैं असाइन कर रहा हूँ, सॉरी नॉट 3, 2 एंड 1 को मैं असाइन कर रहा हूँ 1 एंड 2 के इंडेक्स पे। दैट इज आई जो है मेरा 1 का इंडेक्स है, i+1 जो है मेरा 2 का इंडेक्स है। ओके, मैं ऑपोजिट इंडेक्सेस पे कर रहा हूँ। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इफ़ यू सी, मैंने ओके फर्स्ट टाइम इफ आई रन दिस, तो मेरे पास जो लिस्ट आएगी वो कुछ ऐसी आएगी 2 1 3 4 5 6। एम आई राइट? जब मैं एक बार इसको एग्जीक्यूट करूंगा, इफ आई एग्जीक्यूट इट वंस, देन आई विल गेट दिस लिस्ट, राइट। नाउ अभी जो है, इफ आई एग्जीक्यूट दिस अगेन फॉर द नेक्स्ट, लाइक आई की वैल्यू जब 1 हो जाएगी, देन मेरा क्या होगा, आई की वैल्यू 1 मतलब दिस वन, नॉट दिस, नॉट 2 एग्जैक्टली, बट यहाँ पे 1 कंसिडर होगा, क्योंकि अब 1 पोजीशन पे, लाइक फर्स्ट इंडेक्स पे आई है एंड सेकंड इंडेक्स पे 3 है। ओके, देन मेरी जो है लिस्ट आफ्टर डूइंग दिस स्टेप वंस अगेन, मेरी लिस्ट क्या होगी, 2 3 1 4 5 6। ओके, फिर अगर मैं दोबारा करूंगा, देन मेरा 1 4 से स्वैप होगा, देन 1 5 से, देन 1 6 से। तो कैन यू सी दिस, लाइक what issue we are having? आपको ये समझ आया कि अभी हमारे कोड में क्या हो रहा है?
हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस? लाइक अभी हमारा कोड क्या कर रहा है? ऑफ कोर्स इट इज़ अ बग। अगर आपको बग फिगर आउट आपने कर लिया ना कि कहाँ हमारा बग है, तो आप सोल्यूशन निकाल लोगे, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। लाइक आपको बग मिल गया, अब आपको पता है कि अब एक चीज़ हम कर सकते हैं कि अगर हम सारे इवन या ऑड इंडेक्सेस हम कुछ भी लें, ठीक है, तो जैसे अगर मैं इवन और ऑड इंडेक्सेस को अगर मैं ऐसे हाईलाइट करके थोड़ा लिख दूँ, लेट्स से 0 2 4 दैट्स इट एंड 1 3 5। लेट्स से मैं सिर्फ इवन इंडेक्सेस को लेता हूँ एंड इवन इंडेक्सेस को आई विल रिप्लेस विद ऑड एलिमेंट्स में। ओके, अगर मैं सिर्फ इवन इंडेक्स को लेता हूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, या मैं ऑपोजिट मैनर में भी कर सकता हूँ, मतलब ऑड इंडेक्सेस ले सकता हूँ एंड मैं ऑड और इवन को आपस में रिप्लेस कर सकता हूँ। बोथ आर फाइन, है ना? अगर मैं ऐसे करूँगा तो दोनों पे वर्क कर जाएगा। एम आई राइट? यस, लेंथ शुड बी इवन, बट इतना सबको समझ आ गया कि व्हाट आई एम डूइंग? सो हमें जो है एडजेसेंट एलिमेंट्स को करना है। एडजेसेंट एलिमेंट मीन्स हम दो एलिमेंट्स को एक पेयर समझ रहे हैं, तो हम जो है सिर्फ लाइक एक ही बारी आइटरेट करेंगे इन दो एलिमेंट्स में। हाउ कैन वी डू सो? लाइक हम जो है एक स्टेप दे सकते हैं 2 का। ओके, स्टार्ट वुड बी फ्रॉम 0 अगर मैं ऑड इंडेक्सेस के थ्रू जाऊँ। देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक आई पे, ओके, इफ आई हैव दिस रेंज लाइक 0 एंड लेंथ मेरी इसकी 6 है, सो मैं 6 ले लेता हूँ एंड 2। सो दिस विल जनरेट मी एन रेंज इंडेक्स ऑफ समथिंग लाइक दिस 2 4, राइट? अब मैं इस इंडेक्सेस पे इस कोड को अगर मैं रन करूँगा, देन जो है मेरा मतलब सक्सेसफुल होगा। लाइक 0 के साथ 1 वाले इंडेक्स का एलिमेंट रिप्लेस होगा, 2 के साथ 3 का, 4 के साथ 5 का, राइट? एंड इससे जो है आई कैन इजिली स्वैप देम, लाइक this will be the value of I, this will be the value of I plus 1। ओके, इतना सबको क्लियर है? बाकी सबको अगर किसी को डाउट है यू कैन आस्क, आई कैन एक्सप्लेन अगेन। ऑल राइट, सो यस, नाउ आई हैव लाइक द स्टेप ऑफ 2, देन मैं सिर्फ इवन इवन पे जा रहा हूँ एंड देन आई एम replacing the adjacent elements, and now if I run it, you can see I'm getting the desired output, that is 214365। okay, सेम हम उस पर भी कर सकते हैं इन द इवन इंडेक्सेस, लाइक 1 ऑफ लेन ऑफ टी एंड 2, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा कैच है। लाइक अगर मैं इन इवन इंडेक्सेस को लेता हूँ लाइक दिस रेंज ऑफ 1 टिल 6 एंड 2, देन मेरे रेंज पे जो इंडेक्सेस जनरेट होंगे वो होंगे कुछ ये 1 3 एंड 5। ऑल राइट, मेरे पास ये आएंगे एंड आफ्टर दीज इंडेक्सेस मुझे जो है लाइक दिस विल बी आई। ओके, एंड मैं अगर आई माइनस 1 करूँगा इंस्टेड ऑफ आई प्लस 1, ओके सॉरी, मैं यहाँ पे आई प्लस 1 कर रहा हूँ, राइट? अगर मैं आई माइनस 1 करूँगा तो 1 के लिए 0 आ जाएगा, 3 के लिए 2 आ जाएगा एंड 5 के लिए 4 आ जाएगा। आई कैन डू इन दिस मैनर ऑल्सो, राइट? मैं दोनों में से किसी भी वे में कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इवन इंडेक्सेस लेके आई प्लस 1 कर सकता हूँ, ऑड इंडेक्सेस लेके आई माइनस 1 कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा एंड नाउ इफ आई रन दिस, यू कैन सी आई एम गेटिंग द सेम आउटपुट। ओके, जस्ट दैट मेरे पास अभी इंडेक्सेस पे ये वाली वैल्यूज आ रही हैं, पहले इंडेक्सेस पे ये वाली वैल्यू आ रही थी। ओके, एंड आई कैन calculate the adjacent index from the particular index. So is this clear to you all what we are doing here? Okay, if not even this, so even वाला तो सबको clear होगा, this one, is this clear to you all? All right, that is it। अगर आपको ये भी वे सही लग रहा है आप इससे भी कंटिन्यू कर सकते हो, just that there are like many ways to do one question, so yes। okay, now next one, common characters।
so I'll copy this. Okay, थोड़ा जल्दी करते हैं. So we have this code here. हमारे पास जो है दो वो दिए हैं, दो strings हैं, and we have to return all the common characters in both of the strings. How can we like do so? Intersection. Okay, if anybody can explain. Okay, how many of you have done this question? All right. Okay, so yes, देखो बहुत वेज हैं. हम क्या कर सकते हैं, हम जो है इन दोनों, ओके, यूनिक, वी हैव टू फिगर आउट ओनली यूनिक कॉमन इन असेंडिंग ऑर्डर. ऑल राइट, हमें असेंडिंग ऑर्डर में भी करना है. सर अपन सेट इंटरसेक्शन कर सकते हैं क्या इसमें? यस, वी कैन डू द सेट इंटरसेक्शन. हम कैसे कर सकते हैं सेट इंटरसेक्शन? इन दोनों वर्ड्स को हम पहले सेट में कन्वर्ट करेंगे. ओके, सेट में कन्वर्ट करने के बाद हम दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे. इंटरसेक्शन मीन्स दोज एलिमेंट्स विच आर इन बोथ द सेट्स. ओके, आपको पता होगा इंटरसेक्शन बेसिक, आप लोगों ने मैथ्स 1 तो करा होगा. ठीक है, तो हम वर्ड 1 और वर्ड 2 के बेस पे हम सेट बना लेते हैं. सो सेट इक्वल्स वर्ड 1, s2 equals set word 2. Okay, now intersection, or like if I write common elements, so I can do something like this: s1 dot intersection s2. right, मेरे पास common elements आ गए. and अब मेरे पास common elements जो है set में है. now what they are asking is like I have to arrange them in the, मेरे पास common characters तो आ गए हैं. ठीक है, कॉमन कैरेक्टर्स भले ही सेट में, आई कैन मर्ज देम इनटू अ स्ट्रिंग, दैट इज फाइन. बट मुझे कॉमन कैरेक्टर्स को ना असेंडिंग ऑर्डर में रखना है. हाउ कैन आई मेंटेन द ऑर्डर, लाइक हाउ कैन आई लाइक मेक इट टू अ स्पेसिफिक ऑर्डर? मैं कैसे कर सकता हूँ? ओके, सॉर्ट, सॉर्टेड. ओके, यहाँ पे सॉर्ट यूज कर सकते हैं क्या हम? सॉर्ट फंक्शन लाइक common le dot sort, can we use this? Just say yes or no. No. Okay, क्यों? yes, so see, common elements जो है it is a set, and हम set पे कोई sort function नहीं होता. right, जो sort जो मेथड है that is only for list. या हम क्या कर सकते हैं, हम कॉमन एलिमेंट को सॉर्टेड नाम के फंक्शन में पास कर सकते हैं. दिस विल रिटर्न एज अ सॉर्टेड, रिटर्न अ सॉर्टेड लिस्ट. ओके, एंड इस सॉर्टेड लिस्ट को हम लाइक कैसे लिख सकते हैं, सॉर्टेड एलिमेंट्स. देन व्हाट वी कैन सिंपली डू इज we can simply join it. So common equals an empty string dot join sorted element. Okay, and I can return simply this common. Okay, इतना सबको clear है what I have done So here? the common element was a set, right? yes, And we can directly use sorted on sets. yes, हम sorted जो है कोई भी एक iterable लेता है and it sort that iterable and returns us a list. Okay, you can see here it gives us a list, return a new list containing all items from the iterable in ascending order. Okay, and then मैं उसको join कर रहा हूँ. is this clear to you all? छोटा सा कोड है, ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं. line number 19. okay, what in line number 19 I am doing is जो भी मेरे पास जो लिस्ट होगी, ठीक है, sorted element will be a list something like this, let's say A and L. ठीक है, it is a list of strings and dot like this is an empty string. तो मैं क्या कर रहा हूँ, empty string से इसके अंदर, ये लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उन सबको ज्वाइन कर रहा हूँ. तो आफ्टर ज्वाइनिंग देम व्हाट आई विल गेट इज AL, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग है. अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस डाल दूंगा देन मेरे पास A स्पेस L आ जाएगा. ओके, सो दिस इज हाउ ज्वाइन वर्क्स. ऑलराइट, Okay, sir. Okay, sir. and now if I run this on this test case,
I should get AL, and yes, ALRS, same for this as well. I should get CDE. CD. Now, what if like they ask me to they ask us to return the unique common characters in descending order. अगर descending order में कहें तो what can we do? Like if they ask us to do in descending order, the reverse. Okay, yes. The first basic way is to set reverse equals true. Okay. So reverse equals to true will give us the list in descending order. All right. डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगी तो हमारे पास ऑपोजिट वे में आएंगे लाइक EDC. ओके, ये तो एक बेसिक हो गया. और व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सिंपली डू सॉर्टेड LE इक्वल्स टू सॉर्टेड LE कोलन कोलन -1. राइट, दिस इज हाउ वी कैन रिवर्स अ लिस्ट. सो हम दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं. सो इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू ऑल? ओके, बाकी सबको क्वेश्चन क्लियर है? All right. Now let's move on to the next question. Account occurrence तो बहुत बारी हमने करा है. And the longest common prefix. Okay, that we can do. All right. What test case do we have? Okay. I think इसका question हमारे पास यहाँ पे है. We will do that one. जहाँ पे हमारे पास test cases भी. So okay. This one. इस question के लिए someone has provided the data also, right? Can you provide the data again? Like for this question, the goals one. Okay. No worries. Then हम आगे बढ़ते हैं. कोई और question जहाँ पे हो. काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो सेम है. ये क्वेश्चन मैंने भी ऐसा वाला लिखा है. सो यस, ये कर लेते हैं. kth longest word. Someone has provided data, sir, for the team one. Okay. Okay, we got that is fine then. So matches. Okay. After this, can someone provide the team one Germany? Complete हो जाएगा data. And let's proceed to this question. After this, like line number 8, if I say. Okay, तब तक हम जो है क्वेश्चन देख लेते हैं. सो व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग कि यू आर गिवन अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज मैचेस. सो एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज है हमारे पास, वेयर ईच एलिमेंट लिस्ट कॉरेस्पॉन्ड टू अ मैच रिजल्ट. एंड हर एक मैच रिजल्ट पे टीम जो भी इन्वॉल्व है, टीम 1, टीम 2, एंड द गोल्स दे हैव रिस्पेक्टिव टीम हैव स्कोर्ड. ओके, the winner and the goal scored by the winner team. So एक ऐसी entry example like for this, then define a function get leaderboard which takes matches as input and returns the leaderboard. So leaderboard will be like something like a list of a tuple. All right, let me copy this one. Okay. इसके आगे can someone provide the code, the data set like after this? Team 1 Germany, team 2 France. There will be a goal one also. I think. Yes, Goals goal two. 2. वही मैं Yes. पूछ रहा हूँ. डेटा यहाँ पे like trim हो रहा है ना chat में. If someone can. Okay, no, इसके आगे. Okay, so we have the test case as well. That is fine. Sir, let's insert the random according to us. Okay, ठीक है. We will do that. All right, so मैं यहाँ पे लिख देता हूँ.
but we won't get the exact output. Okay, goals to, let's say मैं goals to equals to 1 कर देता हूँ and यहाँ पे मैं list ख़त्म कर देता हूँ. Okay, so this is it. ये हमारे पास है data set and इस data set के base पे we have to generate the leaderboard. And how the leaderboard will be, it will be a list of tuples. Okay, and tuple में हमारा क्या होगा, like there will be many tuples and in each tuple we would have 3 elements. The first is the team name, then the points and the goal scored. Okay, so teams are sorted by their, okay, so जो हमारी list है वहाँ पे teams जो है total points से sorted होंगी. So that will be the second element which we can say, and points are awarded as follows. So okay, अगर विनर है तो 2 पॉइंट्स, अगर ड्रॉ है तो 1 पॉइंट, अगर लॉस है तो 0 पॉइंट. द टीम हैव सेम पॉइंट्स एंड दे शुड बी सॉर्टेड ऑन द बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द गोल्स. ओके, सो ठीक है. सो व्हाट वी हैव इज लाइक हमारे पास एक ये लिस्ट ऑफ मैचेस हैं, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज में, एंड देयर रिस्पेक्टिव गोल्स वी हैव. ओके, एंड इन गोल्स के बेस पे वी कैन नॉर्मली जनरलाइज कि जिस टीम ने ज़्यादा गोल्स करे हैं दैट टीम इज़ द विनर. अगर टीम ने लाइक इफ़ द टीम इज़ द विनर देन उनको 2 पॉइंट्स मिलेंगे. इफ़ देर इज़ अ ड्रॉ, अगर दोनों ने सेम गोल स्कोर करें, जैसे फॉर दिस वन, ओके, अर्जेंटीना एंड फ्रांस, गोल्स आर 1, सो इट मीन्स दोनों को एक पॉइंट मिलेंगे. अगर टीम हैज़ लॉस्ट, लाइक इन द फर्स्ट केस अर्जेंटीना हैज़ लॉस्ट बिकॉज इट हैज़ लाइक दे हैव स्कोर्ड ओनली 1 गोल एंड ब्राज़ील ने 2 गोल स्कोर करे, सो अर्जेंटीना विल गेट 0 पॉइंट्स एंड ब्राज़ील विल गेट 2 पॉइंट्स. ओके, सो इतना क्वेश्चन सबको क्लियर है. हमें पॉइंट्स, हमारे पास स्कोर्स दिए हुए हैं, गोल्स जो स्कोर करें एंड द विनर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव पॉइंट्स वी हैव टू कैलकुलेट, एंड उसके बाद वी हैव टू सॉर्ट. ओके, सो हम सिंपली एक बार देख लेते हैं. ओके, जर्मनी 0-3, 0-3 मीन्स 0, these are the points. So 0 means like Germany always lost the match and they have only 3 points. So Germany का देखें, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे Germany का भी 0 है. Where we have Germany. Okay, so we have Germany here. यहाँ पे Germany has lost and यहाँ पे also Germany has lost. Okay, यहाँ पे also Germany has lost the match. All right. So yes, let's start. Okay, tell me, अगर मुझे this is the matches list, बहुत बेसिक सा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, don't go into the code and all. आप ही मुझे बेसिक सा बताओ, if I want the goal scored by France in this dictionary, how can I get the value, like how can I get the value 2 from this dictionary in using matches? How can I get the value 2, this value 2, particular this one, from this dictionary? Can anybody tell? Okay, matches 1, goals 2. Yes. So जिन लोगों ने कल का सेशन अटेंड करा होगा, हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे. तो matches is a list. Okay, list of dictionaries. So 0th element is this, first element is this, second is this. So ये हमारा first element है. Okay, so I will write matches of 1. Then the first element is a dictionary and मुझे ये value चाहिए, ये वाली 2, and this value corresponds to the key goals 2. Then मैं यहाँ पे goals 2 लिख दूँगा and then I will get the value 2. So see, अगर आप like if you know how can you access these values, then आपके लिए question बहुत easy हो जाएगा. So that's why I'm doing this first step, that is to get like to know that how can we get the values, okay, for a particular key and all. So ये तो हमारा नॉर्मल हो गया. अब let's move into the question. तो हमें जो है list of tuples बनाने हैं. So the first step should be we can create an empty list. Okay, क्योंकि हमें list of tuples return करने हैं. तो मैं ऐसा करता हूँ, एक लीडर बोर्ड नाम की एक लिस्ट बना देता हूँ, an empty list. Now the next step, we have a list of dictionaries. So हम क्या करेंगे, we will go through each match.
that is for m in matches. Okay, what will be the m क्या होगा, हमारा इंडेक्स होगा या फिर it will be the dictionary? Each dictionary. Yes, it will be a dictionary. Okay, so इस m डिक्शनरी में से हमें क्या करना है, हमें एक तो टीम नेम चाहिए. ओके, हाउ कैन वी गेट टीम नेम बाद में, पहले. ओके, so we have the team names and we have the respective goals as well. All right, तो ओके, हम थोड़ा सा इसको ट्विक भी कर सकते हैं आगे, बट लेट्स गो इन अ सिंपलर मैनर. Okay, so what we will do is okay, Brazil here, Brazil, Argentina, goals 1, goals 2. Okay, so we have two teams, team 1 and team 2, एंड टीम उन दोनों के रिस्पेक्टिव गोल्स भी हैं. हमें सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी टीम जीती है. सो विनर टीम, हाउ कैन वी गेट द विनर टीम नेम बेसिकली. Anybody? By goals, yes. By goals, we can check which team has won the match. Okay, Anmol has shared the complete code, and that is fine. So what we can do is, okay, सबसे पहले यहाँ से values extract कर लेते हैं. Okay, that is fine. जो यहाँ पे इन्होंने किया, मैं इसी को ही copy paste कर लेता हूँ. So m, I would write here m. Okay, मेरे पास इन सब के रिस्पेक्टिव वैल्यूज आ गई. नाउ इफ आई वांट द विनर टीम, सो मैं विनर टीम को कैसे ले सकता हूँ यहाँ पे. एनीवन? ओके, ठीक है. तो नॉट 4 इफ गोल्स 1 इज ग्रेटर देन गोल्स 2, मतलब अगर गोल स्कोर्ड बाय टीम 1 आर ग्रेटर देन द गोल स्कोर्ड बाय टीम 2, इसका मतलब क्या होगा, कौन सी टीम जीती है? Team 1. टीम 1. ओके, सो विनर टीम विल बी टीम 1 and hence team which has lost is the team 2. Okay, the opposite we will have here, winner team which will be team 2 and lost team will be team 1. Okay, यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, हम ड्रॉ वाला हैंडल नहीं कर रहे, राइट? तो ओके, फॉर द ड्रॉ वी विल हैव द डिफरेंट. ओके, सो एक डिफरेंट अप्रोच ले लेते हैं, दैट वुड बी मच बेटर. व्हाट वी विल डू इज, हम ना इन सब की डिक्शनरी बना लेंगे पहले, एंड उस डिक्शनरी के बेस पे हर एक रिस्पेक्टिव उसकी डिक्शनरी बना लेंगे एंड उसको हम बाद में लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे. हाउ? आई विल शो यू. तो डिक्शनरी हमारी ना कुछ ऐसी होगी, the team name which will correspond to a list we can say or anything. Let's say एक डिक्शनरी पे हमारी एक की होगी टीम नेम, एंड वो टीम नेम के कॉरस्पॉन्ड उसकी वैल्यू होगी एक और डिक्शनरी, जिसमें सेम हम ये वाली अप्रोच ले लेते हैं, जिसमें एक तो हमारी पॉइंट्स की होगी. ओके, जो भी हमारे पॉइंट्स हैं, एंड देन द सेकेंड विल बी द गोल्स. ओके, जो भी हमारे गोल्स हैं. सो हम ये अप्रोच करेंगे एंड उसके बाद हम टीम नेम, पॉइंट्स और गोल्स को एक्सट्रैक्ट करके सॉर्ट कर लेंगे. ठीक है? यस, वही आई वाज हैंडलिंग, तो डैट वुड बी बेटर कि हम डिक्शनरी के साथ आगे बढ़े. सो नाउ द बेसिक स्टेप. ओके, सो लेट्स से मेरे पास एक टीम है, टीम नेम, व्हाट आई विल डू इज लीडर बोर्ड टीम 1. ओके, एंड मुझे इसके रिस्पेक्टिव पॉइंट्स ऐड करने हैं, पॉइंट्स समथिंग एंड द रिस्पेक्टिव गोल्स. ओके, एंड सेम फॉर टीम 2 आई विल डू टीम 2. ओके, टीम 1, टीम 2 एंड उसके रिस्पेक्टिव पॉइंट्स एंड गोल्स. अब मुझे पॉइंट्स और गोल्स को कैलकुलेट करना है, एंड हाउ कैन वी डू सो. ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज डिक्शनरी पे अगर हमारे पास ऑलरेडी वो टीम का डेटा है, दिस इज़ द बेसिक जो हम हर बारी डिक्शनरी में करते हैं. अगर टीम ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तब हम ये इनिशियलाइज नहीं करेंगे. अगर टीम एग्जिस्ट नहीं करती, इफ टीम 1
is like not in leaderboard, देन हम ये जो है ये करेंगे, टीम 1 का एक लीडर बोर्ड बना लेंगे, ठीक है. सेम फॉर दिस एज वेल, इफ टीम 2 नॉट इन लीडर बोर्ड, ओके, इज इट मेंशन इन द क्वेश्चन दैट देयर इज ओनली 2 टीम्स? नो, बहुत सारी टीम्स होंगी ना, हम एक पर्टिकुलर मैच के लिए अभी देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर मैच में तो वी विल हैव ओनली 2 टीम्स, राइट. सो दैट इज व्हाई नाउ अभी पहले हमने ये बना लिया, अगर टीम हमारी नहीं है लीडर बोर्ड में देन हम उसका एक बेसिक लीडर बोर्ड बना लेंगे, सेम फॉर द टीम 2. देन what we will do is we will calculate their respective points and all. Okay, if goals 1 are greater than goals 2, that means okay, what this means, कौन सी टीम जीती? अगर goals 1 goals of team 1 are greater than Team the one. goals 2, yes, team 1 won. तो हम क्या करेंगे, लीडर बोर्ड में जाएंगे, टीम 1 लेंगे एंड टीम 1 के जो गोल्स हैं, गोल्स में हम उसके रिस्पेक्टिव गोल्स तो ऐड करेंगे, ठीक है, दैट वी विल ऐड. वेल इनफैक्ट गोल्स तो हम डायरेक्टली यहीं ऐड कर लेंगे, लीडर बोर्ड टीम 1 गोल्स प्लस इक्वल्स गोल्स 2. सेम फॉर दिस, अगर हमारी टीम 1 जीती है तो हमें इस टीम 1 को पॉइंट्स देने होंगे, ठीक है. तो मैं टीम 1 लूँगा एंड टीम 1 को आई विल गिव पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइक टीम जीती है तो पॉइंट्स विल बी 2. ओके, मैं 2 पॉइंट्स दूंगा एंड सिमिलरली उसको 0, टीम 2 को 0 पॉइंट्स मिलेंगे, तो 0 को हमें ऐड करने की जरूरत नहीं. एंड इफ goals 1 equals to goals 2, here we are handling the draw case. अगर दोनों टीम ने ड्रॉ करा है देन हमें दोनों टीम को एक एक पॉइंट देना था, राइट. देन दोनों में आई विल इंक्रीमेंट 1. ओके, इज इट क्लियर? इतना इतना क्लियर है सबको? ऑल राइट, नाउ द लास्ट केस, एल्स पे हमारा क्या होगा, what will be our what will be the last case? टीम 2 won, yes. तो हम क्या करेंगे, टीम 2 के पॉइंट्स को 2 से इंक्रीमेंट कर देंगे. देन वी विल हैव एट द एंड वी विल हैव अ लीडर बोर्ड डिक्शनरी, समथिंग लाइक, मैं आपको शो करता हूँ, रिटर्न लीडर बोर्ड एंड मैं यहाँ पे ना एक बार प्रिंट गेट लीडर बोर्ड और मैचेस पास करता हूँ, देन वी विल सी कि हमारे पास कैसी ये डिक्शनरी होगी. तो हेयर इफ वी सी वी हैव अ डिक्शनरी समथिंग लाइक दिस. अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ शो करूँ तो इट इज समथिंग लाइक दिस. ब्राज़ील के पॉइंट्स हुए 6 एंड दे हैव स्कोर्ड 9 गोल्स. ओके, सेम इफ वी मैच फ्रॉम द एक्सपेक्टेड आउटपुट, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सो यू विल सी लाइक सेम होगा, कुछ डिफरेंट नहीं होगा. ओके, वी हैव different thing, okay, no worries. So see, ब्राज़ील के जो पॉइंट्स हैं these are 6, so points are 6, goals they have scored 9. okay, 9 तो I don't think ब्राज़ील ने यहाँ पे 2 स्कोर करे एंड यहाँ पे 3 स्कोर करे, यहाँ पे 1 किया, so that will be 6. इसका मतलब हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं. Can anybody tell what mistake we are doing? लाइक ब्राज़ील पे हमारे गोल्स तो 6 आने चाहिए बट 9 क्यों आ रहे हैं? कोड में हमारा एक छोटा सा बग है, अगर किसी को पता हो तो. सी, इन लाइन नंबर 47 हम यस टीम 2 को हमें करना था. इफ आई रन दिस नाउ देन हमारे पास जो है सही आउटपुट आएगा. एंड इफ आई कॉपी इट हियर एंड इफ आई पेस्ट देन लेट्स लुक इनटू दिस कोड. ओके, सो ब्राज़ील ने पॉइंट स्कोर करे 6 एंड ब्राज़ील के गोल्स भी हुए 6. दैट इज द करेक्ट दिस वन. फॉर अर्जेंटीना इट शुड बी 3-4. तो अर्जेंटीना का अगर हम देखें तो दिस इज द की वैल्यू पेयर, पॉइंट्स आर 3 गोल्स आर 4. जर्मनी के लिए पॉइंट्स आर 0 गोल्स आर 3. देन द फ्रांस के लिए पॉइंट्स आर 5 गोल्स आर 4. सो वी कैन लाइक मैच कि हमारा आउटपुट जो है और सेम आ रहा है, जस्ट दैट इन डिफरेंट फॉर्मेट. कैन वी से कि हमारा आउटपुट सेम है बट फॉर्मेट डिफरेंट है?
लाइक हमने लॉजिक कवर कर लिया कंप्लीटली, है ना. वी कैन से दिस, राइट. जस्ट दैट वी हैव टू नाउ फॉर्मेट द आउटपुट. ओके, and now how can we format the output? What I will do is I'll create a list leads नाम की. Okay, and what I will do is I will go through each leaderboard. Okay, score of each team basically. तो जो भी मेरी leaderboard नाम की डिक्शनरी बनी थी, this dictionary. Okay, now for I in leaderboard. तो I मेरा यहाँ पे क्या स्टोर कर रहा है? Is it this dictionary? Is it this team name or is it this whole key value pair? I पे मेरा क्या आ रहा है for I in leaderboard में? की वैल्यू पेयर. ओके, नॉट की वैल्यू पेयर. आई में हमारे सिर्फ की आ रही है. ओके, क्योंकि डिक्शनरी में अगर हम डिफॉल्ट आइटरेट करते हैं वी विल गेट द की. ओके, सो हम यहाँ से टीम नेम ले सकते हैं, और इफ आई सिंपली राइट टीम इक्वल्स आई, तो यहाँ पे मेरा टीम नेम आ गया. अब मुझे उसके पॉइंट्स चाहिए. हाउ कैन आई गेट द पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर टीम? लाइक मुझे ब्राज़ील मेरा आ गया है, मुझे ब्राज़ील के पॉइंट्स चाहिए, दैट इज़ द 6. हाउ कैन आई गेट? सो okay, leaderboard of I, it will give me this key value pair, right? This dictionary, not value of 0. So ये जो है यहाँ पे leaderboard of I, ये जो है मुझे ये वाली डिक्शनरी देगा, ठीक है. एंड इस डिक्शनरी में से मुझे पॉइंट्स की वैल्यू चाहिए, देन आई विल सिंपली राइट पॉइंट्स हियर. ओके, एंड नाउ फॉर द गोल्स. आप लोग अब मुझे गोल्स के लिए बताओ. Anybody? Yes, same but goals. Yes, पूरा सेम होगा, just that will be goals. See, guys, थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज मत हो. अगर आप आइटम्स यूज करोगे ना, लीडर बोर्ड डॉट आइटम्स, देन आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट में डेटा आएगा. अगर आप नॉर्मली डिक्शनरी से आइटरेट कर रहे हो तो आपके पास की मेन होगी, एंड आपको उस की के बेस पे सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है. सो आप इन सब में कंफ्यूज मत हो. आप पहले देखो कि आप किसके ऊपर आइटरेट कर रहे हो. आप डिक्शनरी पे आइटरेट कर रहे हो या डिक्शनरी डॉट आइटम्स करके उस पर आइटरेट कर रहे हो, ठीक है. सो दिस इज लाइक क्लियर योर बेसिक्स फर्स्ट, तब आप आगे लाइक प्रोसीड कर पाओगे. ओके, देन वी हैव द टीम, वी हैव द पॉइंट्स एंड वी हैव द गोल्स. अब हमें क्या करना है? सिंपली ओके, इफ आई नेम इट समथिंग लाइक दिस, टीम नेम. तो मैं एक पर्टिकुलर टीम का ऐसे बना लेता हूँ, और लाइक मैं टीम ही रखता हूँ. आई वुड राइट स्कोर एंड एक टपल बना लेता हूँ, टीम points goals. Okay, I have created one tuple, and what I will do is I will append that tuple into score, into leads. Okay, इतना clear है सबको अब what I am doing here? बाकी सबको clear है? Yes. किसी को कोई डाउट इसमें? I hope not. एंड देन हम सिंपली लीड्स को रिटर्न कर रहे हैं. यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, आई एम नॉट डूइंग. कैन एनीबडी टेल? मैं एक चीज स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे. लाइक डेटा हमारा इस फॉर्मेट में है, अभी सॉर्ट नहीं हुआ है. राइट. दैट शुड बी सॉर्टेड. ओके, एंड सॉर्ट का क्राइटेरिया क्या है? इफ वी सी इन द क्वेश्चन, सो टीम्स आर सॉर्टेड बाय टोटल पॉइंट्स. ओके, पॉइंट्स के बेस पे सॉर्ट करना. अगर दे हैव सेम पॉइंट्स एंड दे शुड बी सॉर्टेड एट द नंबर ऑफ गोल्स. अभी सिर्फ पॉइंट्स का देखते हैं. ओके, सॉर्ट आप मैनुअली भी सॉर्ट कर सकते हो, सॉर्टेड वगैरह इन सब का भी यूज़ कर सकते हो. व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज़ द सॉर्ट फंक्शन, क्योंकि ये लिस्ट है लीड्स, तो मैं सॉर्ट का यूज़ करता हूँ. यहाँ पे आई विल पास अ की. अभी कल जितने लोगों ने, अगर जिसने लैम्डा फंक्शंस का देखा होगा, तो यहाँ पे वी विल यूज़ द लैम्डा फंक्शन. व्हाट आई विल डू इज, तो की में ना हम एक फंक्शन पास कर सकते हैं. ओके, लैम्डा एक्स. एक्स विल बी अ स्पेसिफिक टपल, जो यहाँ पे टपल है ना, दैट एलिमेंट. एक्स जो है मेरा एक एलिमेंट होगा, एंड मुझे पॉइंट्स के बेस पे सॉर्ट करना है, ठीक है. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स ऑफ 1. ओके, एंड ये मेरा जो है पॉइंट्स के बेस पे सॉर्ट हो जाएगा. इज इट क्लियर? पॉइंट्स मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो मैं यहाँ पे एक्स ऑफ 1 लिख रहा हूँ, एंड ये मेरा पॉइंट्स के बेस पे सॉर्ट हो जाएगा. ओके, नाउ इफ आई रन दिस,
एंड इफ़ यू सी ओके मेरे पास ऑपोजिट मैनर में आ रहा है, लाइक जर्मनी सबसे ऊपर आ रहा है, देन अर्जेंटीना, देन फ्रांस, देन ब्राज़ील। मुझे इसको ऑपोजिट में वे में चाहिए। हाउ कैन आई डू सो? मेरे असेंडिंग में आ रहा है, आई वांट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। Reverse is equals to true. यस, आई वुड सेट रिवर्स इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे जो है मेरा ये सॉर्ट हो जाएगा। ब्राज़ील 6-6, then France 5-4, Argentina 3-4, and Germany 0-3. Okay. Now there is one catch, वो I would suggest आप लोग खुद करो, एक्सप्लोर, टेक हेल्प ऑफ गूगल, चैट जीपीटी, स्टैक ओवरफ्लो, कैसे भी, क्योंकि करंटली यू आर लर्निंग। ओके, अभी आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे, या आप खुद से पहले टैकल करो। You have to tackle this condition. If team have same points, then they should be sorted based on the number of goals. ये आप लोगों के लिए एक है छोटा सा चैलेंज। लाइक सारा कोड मैंने कर दिया, बस एक चीज़ आपको करनी है, यहीं पे आपको थोड़ा सा हैंडल करना है, एंड देन आपका पूरा हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए है, जो भी करना चाहे कर सकता है, डेट इज़ अप टू यू। डोंट वरी, मैं ओके कोड ओके काफ़ी बड़ा है, आई विल स्टोर दिस कोड समवेयर, code.py, and I'll copy this. I'll share the code. Okay. Don't worry about this. Yes. Not code, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ leader board question. Okay, that will be fine. All right. तो I hope ये क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। मैं आपको सारे कोड के फाइल शेयर कर दूंगा। Yes, sir. Sir, it's being recorded now. Yes, it is being recorded. Yes, Suresh, Okay. you are right. हम एक टपल कर सकते हैं x1, x2. That is great. That is very interesting. That आपने अभी कर लिया। ओके, तो ये हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, काफ़ी सारे लाइक ऑलरेडी इट्स बिन 2, सो थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। Okay, this is from the section 2, problem 2 of day 1. Yeah, I'm doing this question. Okay, let's do 2 questions from here. First question is this one. Are you all able to read this question? ये सबको like, is it visible? Okay. So question is saying, given a matrix M into N, find the index of the row with the maximum sum of its even numbers. In case of more than one such rows, return the index of row with the largest index among them. Okay, तो हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है m by n का। ओके, दिस इज द मैट्रिक्स। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करके लिखता हूँ जिससे क्लियर होगा। ओके, हाउ मेनी रोज डू वी हैव हियर? 4. 4। एंड ठीक है, मैं रोज को सीधा ऐसे लिख देता हूँ। व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉलम्स? हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स डू वी हैव? 4. 4। ओके, सो कंसिडर कि सारी रोज में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे क्योंकि ये मैट्रिक्स है। ओके, तो हमें क्या करना है, फाइंड द इंडेक्स ऑफ रो विद द मैक्सिमम सम ऑफ इट्स इवन नंबर। मतलब हर एक एक रो पे हमें जाना है, उसके इवन नंबर का हमें सम लेना है। ओके, एंड जिस भी उसका लाइक इवन जिस भी रो का इवन नंबर सबसे ज़्यादा होगा, हमें उसके इंडेक्स को रिटर्न करना है। ओके, सो व्हाट आर द इवन नंबर इन दिस केस? इवन नंबर कौन से हैं फर्स्ट रो में? 2,4। ऑलराइट, एंड 2,4 का सम क्या है? इट इज 6। ठीक है, नाउ फॉर दिस व्हाट आर द इवन नंबर्स? 6 and 8, एंड इनका सम है 14। ओके, नाउ फॉर दिस द इवन नंबर्स आर 10 and 12, एंड इनका सम है 22। ओके, नाउ फॉर दिस द इवन नंबर्स आर 4, 6, 8, 10. What is the sum? 10, 20, 28. Yes. So 28,
एंड मैक्सिमम सम किसका है, रो नंबर 4 का, एंड इसका इंडेक्स क्या है 3, ठीक है। इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स 3 है। तो हमें जो है हमें आउटपुट देना है 3। ओके, सो आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन क्या है आप सबको? Yes. दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दिस इज अ मीडियम लेवल क्वेश्चन आई वुड से फॉर दिस ओपीपी। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इट विल बी अराउंड ऑफ 10 to 20 मार्क्स, आई थिंक 20 मार्क्स का होगा मे बी। तो इट इज़ लाइक अ गुड क्वेश्चन। अब लेट्स डू दिस। तो इसका दे हैव दिस एज वेल, रो indexes. I'll copy this particular okay. अब let's do this question. So we have a matrix passed here in this function and हमें उस matrix के बेस पे index निकालना है. So what should our first step be? कोई बताएगा? ओके, हम सबसे पहले रोज का सम कंप्यूट कर रहे हैं, राइट, है ना। तो हम जो है क्या करेंगे, एक ना रो सम करके हम एक लिस्ट बना लेते हैं जिसमें हम हर एक एक रो के इवन एलिमेंट्स का सम कर लेंगे। यस, तो मैं सबसे पहले देखो, जस्ट फॉलो व्हाट आई एम डूइंग, आपको क्लियर होगा कि हाउ एम अप्रोचिंग। सेम वे जैसे हमने यहाँ पे अप्रोच करा था, सबसे पहले हमने एक एक रो ली, उस रो में से इवन नंबर निकाले एंड देन उसको सम किया, एंड फिर सारे सम को वी आर कंपेयरिंग, एंड सम का जो वो है इंडेक्स, जिसका भी लाइक मैक्सिमम सम है, हम उसका इंडेक्स ले रहे हैं, ठीक है। सो मैं वही कर रहा हूँ। सबसे पहले आई विल गेट ऑल द रोज, एंड उन रोज का जो भी इवन नंबर है वो लूंगा, एंड उनका जो भी सम है वो मैं लूंगा, एंड वो सम को मैं इसमें स्टोर करूंगा, रो सम में, ठीक है। तो आई विल गो समथिंग लाइक दिस फॉर रो इन मैट्रिक्स। तो मेरे पास एक रो आ जाएगी, ठीक है, दिस पर्टिकुलर रो। नाउ टेल मी हाउ कैन आई गेट द इवन नंबर फ्रॉम these like this row? कोई बता सकता है? Another for loop. Yes, I will what I will do is I will create a list of evens. Okay, बहुत बेसिक से मैं जा रहा हूँ, और इनफैक्ट इवन रादर देन क्रिएटिंग द इवेंट्स लिस्ट, मैं s इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइज कर दूंगा, जिसमें मैं सम ऐड करूंगा इवेंट्स का। फॉर आई इन रो मेरे पास हर एक एक एलिमेंट आ जाएगा, ओके, दैट इज 1 2 3 4 आई में। ओके, इफ I mod 2 equal to 0, that means I am checking for even. If that number is even, I will increment that number in s. Okay, is it clear to you all? Yes. And okay, now I will append row sum dot append s. Okay, मैं sum append कर रहा हूँ आफ्टर दिस फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर नहीं, फॉर लूप के बाहर, ये वाले फॉर लूप में, क्योंकि मुझे हर एक एक रो का चाहिए, मुझे हर एक एक एलिमेंट के बेस पे नहीं करना। ओके, एंड एक चीज़ तो ये तो दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग, अगर मैं सम का इंडेक्स देखूँ तब भी 3 आएगा, अगर मैं रो के बेस पे इंडेक्स देखूँ तब भी मेरा 3 आएगा। सो मैं यहीं से इंडेक्स निकाल सकता हूँ, राइट। मुझे बस अब ये रो सम में से मैक्सिमम एलिमेंट का इंडेक्स चाहिए। एम आई राइट? लाइक मेरे पास रो सम में, मेरा रो सम जो है फॉर द अबव मैट्रिक्स इट विल बी समथिंग लाइक दिस 6 14 22 28, एंड 28 इज द मैक्सिमम एलिमेंट और उसका इंडेक्स है 3। मुझे मुझे 3 चाहिए, एंड 3 के लिए मुझे इसका मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए रो सम का। हाउ कैन यू गेट द मैक्सिमम एलिमेंट? बहुत बेसिक सा है, हम पाइथन के फंक्शंस यूज कर सकते हैं। Index dot max. नॉट इंडेक्स डॉट Rows. मैक्स, हम मैक्स फंक्शन को कॉल करेंगे एंड हम उसमें पास करेंगे रो सम को, हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट आ जाएगा, डेट इज 28, ठीक है। उसके बाद हमें उसका इंडेक्स चाहिए, मैक्सिमम एलिमेंट का इंडेक्स, तो मैं सीधा लिखूंगा इंडेक्स इक्वल्स रो सम डॉट इंडेक्स मैक्स एली। ओके, तो मेरे पास यहाँ से इंडेक्स आ गया,
and return index. So this is it. And now if I like use this matrix and call this function print, pass in this matrix, and I should get 3. Yes, so I'm getting answer 3. Okay, is it clear to you all? Okay, जिसको clear नहीं है they can ask. अगर सबको clear है just give a thumbs up so that we can move ahead. Before the function definition, we defined m and n. We didn't use them at No, all, right? वो मैंने बस आप लोगों के लिए like just to clear the understanding कि rows and columns कितने हैं उसके लिए मैंने किया था. Okay, ये सबको clear है question? How we have approached it, what I have done, everything. So आप लोगों को एक चीज़ दिख रही होगी कि आई एम ब्रेकिंग द क्वेश्चन इनटू वेरियस पार्ट्स, कि जैसे रोज़ का सम निकालना है तो मुझे पहले रोज़ चाहिए, तो रोज़ मेरी इससे मिल जाएंगी, एंड उसका सम जो है आई एम स्टोरिंग इट हेयर, एंड उसको एक एक चीज़ को मैं एक एक छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करके आई एम डूइंग. सेम थिंग यू शुड डू, ओके, इन द OPP. All right, so first thing what we have to do is हमें मैट्रिक्स में जितनी भी रोज है ना उन रोज के इवन एलिमेंट्स को सम करना है, ऐड करना है. ओके, दैट इज 2 4 हेयर, 6 8 हेयर, 10 12 हेयर एंड ऑल द एलिमेंट्स हेयर. एंड वो सारे इवन एलिमेंट्स के सम में से हमें देखना है मैक्सिमम सम किसका है, किस रो का है, एंड जो भी मैक्सिमम सम है ना हमें उसका इंडेक्स देना है. तो यहाँ पे वी कैन सी 28 इज द मैक्सिमम सम एंड उसका इंडेक्स है 3. ठीक है, तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम क्रिएटिंग अ लिस्ट रो सम जिसमें मैं हर एक एक रो के इवन एलिमेंट्स का सम स्टोर करूंगा. ठीक है, देन आई हैव अ फॉर लूप जिसमें मैं हर एक एक रो पे जा रहा हूँ, एंड उस हर एक रो पे आई एम चेकिंग फॉर इवन एलिमेंट्स. जहाँ भी मुझे इवन एलिमेंट मिल रहे हैं ना मैं उसका सम कंप्यूट कर रहा हूँ, एस में उसका मैं सम स्टोर कर रहा हूँ. ठीक है, एंड उस सम को मैं रो सम में डाल रहा हूँ. ठीक है, तो मेरी रो सम जो है वो एक ये लिस्ट हो जाएगी. अब इस लिस्ट में से मुझे मैक्सिमम सम चाहिए, मैक्सिमम सम इज 28, एंड इस मैक्सिमम सम को मुझे इंडेक्स चाहिए. तो मैक्स फंक्शन की हेल्प से मैं मैक्सिमम सम निकाल सकता हूँ. ठीक है, and then I will get the maximum sum element or maximum sum, that is 28, and row sum dot index max sally I will get 3. Okay, so this is how I have done this question. This is a very basic approach. बहुत सारे shortcuts भी हो सकते हैं, होंगे in fact, हो सकते हैं क्या. So I'm not going into like all of that. I'm just like मैंने एक दो पे I have done the refactoring जो मैंने आपको दिखाई थी स्टार्टिंग में. जस्ट लाइक आपको बेसिक्स, आपको लॉजिक क्लियर हो रहा है, दैट इज प्रीटी मच इट. ऑलराइट, लेट्स टेक अ 2-minute ब्रेक. 2:05 पे वी विल कंटिन्यू. एंड okay, Vishnu, recording of this session, I am recording this session and I will upload the recording in my YouTube channel here. Okay, this is my YouTube channel, you can subscribe to it. All right, so yes, अभी तक like how is the session? I think 1 hour और लगेगा and we will end the session then. Are you all like enjoying it? मतलब बोर तो नहीं हो रहा, या सब समझ आ रहा है ना? How many minimum break? बस 1 minute का break. At 2:05 we will continue. Okay. Thank you guys. Thank you. So yes, then now we will do like some file handling questions. Okay, file handling के questions ज़्यादा OPP में नहीं थे, but we will do them जिससे like आपको सबको अच्छे से clarity मिल जाए. All right, thank you so much Vishnu. So let's continue. Okay, मैं इसका भी स्टोर कर लेता हूँ मैट्रिक्स रो सम करके, मैट्रिक्स रो सम डॉट py and I will store it here. I will share the code. Okay, मैं आप सबको कोड शेयर कर दूंगा, so don't worry, आपको कोड मिल जाएगा जो जो भी what I am doing here now. I think okay, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं then हम उस पर आगे बढ़ेंगे. So we have this employee data
Okay, if I like sort it in a particular manner, department and all, and here also department. Okay, all right. So this is the particular, like we can say, the employee data we have. Okay, this is the data we have. What we have to do is given a list of dictionaries, where is dictionary represent employees record, name a function highest paid departments and that accepts to argument employee data and k. It returns list of top k departments with the highest average salary. Okay, so highest average salary. So yes, this is the function. ये काफ़ी बढ़िया को like question है. It is also medium level question we can say, because we have to make groups also for the departments and all. It will be around of 20 marks I think. Okay, so the question is clear to you all. हमें क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है जिसमें एक ना हम यहाँ पे k इनपुट कर रहे हैं एंड उस लिस्ट में टॉप के डिपार्टमेंट्स के एवरेज सैलरी हमें देनी है. सैलरी बीइंग इन द फ्रॉम एवरेज सैलरी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट. लाइक HR is the department, engineering is the department, and marketing is the department. Now like for HR we have 2 employees and their salary is this 50,000 and 60,000. So their average is like अगर मैं यहाँ पे आउटपुट लिखूँ तो मेरा आउटपुट कुछ ऐसा आना चाहिए, लिस्ट एंड डिपार्टमेंट्स. ओके, तो ओके अगर मैं एक एक का लिखूँ तो HR की मेरी कितना होगा एवरेज सैलरी from here. If we see 50,000 here, 60,000 here, so that will be 55,000, right? And then for the engineering 80 and 90, and if I write here engineering equals, so 85 हो जाएगा यहाँ पे. And then we have the marketing में एक ही है, so 70 is the answer, marketing. Okay, so this is the average for this is the average for this, and this is for the HR. Okay, if I say k equals to 1, मतलब मुझे इन सारे डिपार्टमेंट में से लाइक ओके फर्स्ट आई हैव टू सॉर्ट दिस. तो अगर मैं सॉर्ट करूं तो मेरे पास कुछ ऐसे डिपार्टमेंट आएंगे. मार्केटिंग सबसे पहले, सॉरी इंजीनियरिंग सबसे पहले. आई एम सॉर्टिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, देन मार्केटिंग, देन HR. Now if I say k equals to 1, then engineering should be my answer. If I do k equals to 2, then marketing, engineering and marketing should be my answer. If I do k equals to 3, then मेरा ये आंसर होना चाहिए. Okay, so is the question clear to you all? Yes. For the questions I have like various questions mainly for the file handling. Okay, 13 questions I have prepared. मैं आपको सारे PDF शेयर करूँगा. ओके, इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन आपके पास यू हैव ऑलमोस्ट 2 days, आप आराम से प्रिपेयर करना. ओके, सो दिस इज इट. नाउ लेट्स प्रोसीड. अब आप लोग मुझे बताओ हाउ कैन वी प्रोसीड फर्दर, लाइक हाउ कैन वी स्टार्ट. एनीवन? ओके, group by department and make a new dictionary for that maybe. Yes, so see मुझे जो है list of tuples देने हैं. ओके, मुझे list of tuple देने हैं. ऑल राइट, मुझे लिस्ट भी नहीं देनी, मुझे list of tuple देने हैं. that is like more easier. so मैं क्या करूँगा, list of tuples. okay, by the way, if I have a dictionary something like this, if I do d dot items, तो इसका आउटपुट कुछ ये आएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 1 and 2 2. am I right? if I do d dot items, I'll get a list of tuples something like this, right? and then I can sort it based upon these values, different values, है ना? so what I will do is I'll create a average or simply department salary
नेम की आई विल क्रिएट अ डिक्शनरी, ठीक है। इन डिक्शनरी आई विल स्टोर देयर द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एज अ की एंड उनकी जो एवरेज सैलरी होगी एज अ वैल्यू, ठीक है। इज इट फाइन? सो नाउ व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप? मुझे इस डिपार्टमेंट सैलरी को फिल करना है, सो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? मेरे पास एम्प्लॉय डेटा गिवन है। First, we'll iterate over the list. फॉर डेटा इन एम्प्लॉय डेटा एंड ओके, मेरा डेटा में क्या स्टोर होगा फॉर डेटा इन एम्प्लॉय डेटा? इज इट द इंडेक्स और इज इट द डिक्शनरी? आई एम डूइंग फॉर डेटा इन एम्प्लॉय डेटा, यस इट विल बी अ डिक्शनरी। सो आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे होंगे कि हाउ एक एक वेरिएबल में क्या क्या स्टोर हो रहा है। ओके, नाउ अब मुझे चाहिए डिपार्टमेंट की वैल्यू। हाउ कैन आई गेट द डिपार्टमेंट फ्रॉम दिस डेटा? Data square department. Yes, data square and square bracket and this department. I'll simply copy paste it. And I also want the salary. How can I get the salary? Same. Salary is Salary, equals to. right? Salary. So मेरे पास salary आ रही है, department आ रहा है. Now I have to store that particular department salary है. अब डिक्शनरी पे वही बेसिक चीज़, अगर डिपार्टमेंट हमारा है इस डिक्शनरी में, ठीक है। ओके, बेसिक हम सबसे पहले जाते हैं। इफ डिपार्टमेंट इज नॉट इन डिपार्टमेंट सैलरी, अगर मेरा इस डिक्शनरी में नहीं है ये डिपार्टमेंट, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट अ एम्प्टी की वैल्यू पेयर। ओके, हाउ ओके, डिपार्टमेंट सैलरी एंड डिपार्टमेंट एंड इट्स रिस्पेक्टिव वैल्यू एज 0। ओके, मैं ये कर दूंगा बस इतना सा। अगर Is there a reason why we are taking the not case first? नॉट केस नो, मैं इन करके भी कर सकता हूँ, जस्ट दैट मैं नो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लाइक ये थोड़ा सा एक लाइक फर्स्ट पे होता है, हम सबसे पहले की वैल्यू डिफाइन करते हैं, राइट, की वैल्यू पे। Right. तो इसलिए मैं सबसे पहले ये कर रहा हूँ, आप लोग जैसे मर्जी कर सकते हो, आपके ऊपर है। नाउ अब मुझे जो है सैलरी चाहिए, सैलरी भी नहीं, मुझे सैलरी का एवरेज स्टोर करना है। ओके, सो हाउ विल आई स्टोर द एवरेज? नाउ दैट इज समथिंग डिफरेंट। मैं क्या कर सकता हूँ, डिपार्टमेंट सैलरी की ना मैं लिस्ट बना सकता हूँ, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, मैं एक एक की सैलरी स्टोर कर लूँगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आई विल रिप्लेस दैट लिस्ट विद द दैट रिस्पेक्टिव एवरेज वैल्यू। ओके, मतलब मैं लिस्ट में ना सारी सैलरी स्टोर कर लूँगा। वट आई विल डू इज डिपार्टमेंट सैलरी ऑफ डिपार्टमेंट या प्लस डॉट अपेंड सैलरी। ओके, इतना क्लियर है सबको मैं क्या कर रहा हूँ? सो इट विल बी ओके, आई विल शो यू द आउटपुट डायरेक्टली। रिटर्न डिपार्टमेंट सैलरी and if I run this print highest field and employee data, and if I run this, okay, so I have to pass in a k as well, so अभी के लिए मैं सिर्फ एक 1 पास कर देता हूँ। so this is how I am getting the dictionary। HR के लिए I am getting 50-60 जो मेरा ये था, okay, and engineering के लिए I am getting 80-90 and marketing के लिए I am getting this। okay, अब मुझे इसको थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म करना है। आई वॉन्ट टू टेक द एवरेज ऑफ दीज सैलरीज। वट आई कैन डू इज आई कैन क्रिएट अनदर फॉर लूप एंड आई विल गो थ्रू ईच डिपार्टमेंट फॉर डिपार्टमेंट इन डिपार्टमेंट सैलरी। ओके, मेरा इस पे क्या स्टोर होगा डिपार्टमेंट में? इज इट द HR और इज इट द की वैल्यू पेयर और इज इट द दिस लिस्ट कीज, राइट। सो अब मुझे सैलरी का एवरेज निकालना है। हाउ कैन आई टेक द एवरेज ऑफ द सैलरीज? yes, you are right। so what I can do is I can take the total here, that is the sum of department of डिपार्टमेंट सैलरी ऑफ डिपार्टमेंट, इससे मैंने सम निकाल लिया एंड अब मुझे लेंथ भी निकालनी है। ओके, और इफ आई से एन, मैं एन लिख लेता हूँ, एन वुड बी द लेंथ ऑफ डिपार्टमेंट सैलरी एंड डिपार्टमेंट। ओके, सो मेरे पास टोटल आ गया, एन आ गया। एवरेज आई कैन कंप्यूट नाउ इजीली, टोटल डिवाइडेड बाय एन, दिस विल बी द एवरेज।
ओके, अब मैं क्या करूँगा, डिपार्टमेंट सैलरी पे जाके उस डिपार्टमेंट की वैल्यू मैं एवरेज सेट कर दूंगा, ठीक है। आई कैन डू दिस राइट, डिक्शनरी को आई कैन मॉडिफाई, सो आई कैन डू दिस। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ ना, नाउ यू विल सी द डिफरेंस। नाउ आई हैव दिस डिक्शनरी। पहले मेरे पास ये थी डिक्शनरी ऊपर वाली, जिसमें आई हैव द की वैल्यू पेयर्स, द वैल्यूज आर इन अ लिस्ट, and now I'm just taking the average, so you can see 55,000 here, 85,000 here, 70,000 here. Is this clear to you all? इतना अभी तक जितना हमने करा। ओके, अभी एक छोटी सी लास्ट चीज रह गई है। now I want to return a list of tuples. Okay, मैं अब इस डिपार्टमेंट सैलरी डिक्शनरी को लिस्ट ऑफ टपल्स में कैसे करूँगा, ये आप लोग मुझे बताओ। हाउ कैन आई कन्वर्ट देम इनटू लिस्ट ऑफ टपल्स? मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, यस, आइटम्स। so I would go department salary dot items. It will give me the list of tuple, where the first element will be the, in each tuple first element will be the HR, the department and the respective value. अगर मैं इसको रन करूँगा तो you can see मेरे पास एक ऐसे list of tuple आ रहा है। ओके, फर्स्ट टपल में ये है, सेकंड टपल में ये है, थर्ड टपल में ये है। इज इट क्लियर टू यू ऑल दिस पार्ट, द आउटपुट एंड एवरीथिंग? ओके, अब मुझे ना इसको क्या करना है, मुझे इसको सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। हाउ कैन आई सॉर्ट इट? एनीबडी, ये तो आप सब मुझे बता सकते हो, वेल इट इज इजी। ओके, यस, आई कैन यूज सॉर्टेड। ओके, अब यहाँ जो है, यहाँ एक छोटा सा कैच है कि जो ये लिस्ट ऑफ टपल हमें लगता है, ओके, बट इट इज एक्चुअली ऑफ डिक्ट आइटम्स ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम इस पे सॉर्ट यूज नहीं कर सकते, हम जो है सॉर्टेड फंक्शन का यूज करेंगे, हम डॉट सॉर्ट यूज नहीं करेंगे। एंड आई वुड सेट रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, क्योंकि मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। अब एक और चीज, मुझे जो है सैलरी के बेस पे सॉर्ट करना है। हाउ कैन आई सॉर्ट बेस्ड अपॉन द सैलरी? We can use key and Yes. lambda function. की इक्वल्स लैम्डा एक्स, एक्स जो है मेरा एक पर्टिकुलर टपल हो जाएगा, और इफ आई वुड से टी, ठीक है, एंड टपल की मुझे सैलरी देखनी है, सैलरी इज इन द फर्स्ट इंडेक्स। ओके, सी, जो डॉट आइटम्स है ना, इट रिटर्न्स अ डिक्ट आइटम, जो दिखता लिस्ट ऑफ टपल्स है, बट इट इज ऑफ अ डिक्ट आइटम्स ऑब्जेक्ट, जो लिस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इट लुक्स लाइक लिस्ट बट इट इज अ डिक्ट आइटम। मुझे जो है, मैं वहाँ पे सॉर्ट यूज नहीं कर सकता, सॉर्ट सिर्फ मैं लिस्ट पे ही यूज कर सकता हूँ, इसलिए मैं सॉर्टेड यूज कर रहा हूँ। जनरली यू कैन यूज सॉर्टेड इन एनीथिंग, सॉर्टेड सब में चलता है, ठीक है, सेम आई एम डूइंग। एंड की मैंने यहाँ पास कर दी, एक फंक्शन है, जो फंक्शन क्या करेगा, वो एक एक पर्टिकुलर टपल को ले रहा है जो एलिमेंट है, एंड उस एलिमेंट की ये फर्स्ट इंडेक्स पे सैलरी है, मुझे सैलरी के बेस पे सॉर्ट करना है, सो आई एम डूइंग टी ऑफ 1। ओके, इज इट क्लियर टू यू ऑल? सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट उसमें? पर हम तो सॉर्ट और सॉर्टेड में सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि सॉर्ट इज ओनली यूज फॉर लिस्ट। लिस्ट, यस, वही चीज़ मैंने कल भी बोला था। थोड़ा सा है, आप अगर लाइक लिस्ट पे बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है, अगर सिर्फ आप लिस्ट पे कर रहे हो सॉर्टिंग तो आप ओके, की वाला समझ नहीं आया, आई विल एक्सप्लेन अगेन। अगर आप सिर्फ लिस्ट पे कर रहे हो सॉर्ट, देन आप डॉट सॉर्ट यूज़ कर लो। अगर आप लिस्ट के अलावा कहीं और भी कर रहे हो, आप सॉर्टेड यूज़ करो। ओके, नाउ द की, सो सी, जो आइटम्स है ना, आइटम्स मेरा ये टपल है, ठीक है, आइटम्स में एक एक एलिमेंट मेरा टपल है, एंड मुझे टपल ना HR या पूरे टपल के बेस पे मुझे सॉर्ट नहीं करना, मुझे सॉर्ट करना है सैलरी के बेस पे, ठीक है। so there is a parameter key in sorted, max, min and all these functions, जिसके बेस पे I can do the sorting and all, ठीक है। सो मुझे जो है ये चाहिए, लाइक मुझे सैलरी के बेस पे सॉर्ट करना। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम पासिंग अ फंक्शन लैम्डा फंक्शन टी। इस फंक्शन में एक पैरामीटर है टी, टी इज बेसिकली दिस होल टपल एलिमेंट, ठीक है। एंड इस टपल एलिमेंट में से मैं फर्स्ट इंडेक्स पे जो है वो सैलरी है, मैं वो ले रहा हूँ, एंड उस सैलरी के बेस पे आई हैव टू सॉर्ट। ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग हियर। लैम्डा फंक्शंस क्या होते हैं, ये आप लोग मेरा कल वाला सेशन देख सकते हो, उसमें आई हैव क्लियर्ड इट, लाइक व्हाट आर लैम्डा फंक्शंस एंड हाउ
can we use it and all. Okay, so this is it. Now if I run this, now you can see engineering का मेरा सबसे ऊपर आ रहा है, then marketing, then HR. अब now the question is I have to return the top K. ठीक है, तो अब मैंने, आपने देखा होगा, मैंने अभी तक सबको क्लियर है इतना इतना कोड जितना हमने करा? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? टी इज दैट जब भी हम की में हम कुछ करते हैं ना साइन, तो पर्टिकुलर एलिमेंट होता है, ठीक है? तो इस आइटम्स में टपल इज अ पर्टिकुलर एलिमेंट, सो दैट्स व्हाई. ओके, नाउ मुझे के का यूज़ करना है. आई वांट द टॉप के. मेरे पास सॉर्टेड लिस्ट है, मुझे सिर्फ फर्स्ट के एलिमेंट्स रिटर्न करना है. कैन एनीबडी टेल मी हाउ कैन आई रिटर्न फर्स्ट के एलिमेंट्स? यस, आइदर आई कैन यूज 0 और नॉट, इट्स अप टू मी. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे स्लाइसिंग कर दी बस, कॉलन टिल के. अगर मैं इसको ऐसे रन करूँगा, सिर्फ बाय पासिंग 1, देन आई विल गेट इंजीनियरिंग. इफ आई पास इन 2, देन आई विल गेट इंजीनियरिंग एंड द मार्केटिंग. ओके, तो आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा. I have break down the question into like very small parts and अच्छे से पूरा we have done the question. थोड़ा सा बड़ा कोड लग रहा होगा आप लोगों को, that is fine. well, इससे बहुत बड़े बड़े कोड you will write in diploma. okay, तो इसको बड़ा मत समझो, it is a normal logic. मेन आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा आई होप कि how I have proceeded further. okay, I'll store this code in department salary. Not clear. Okay, yesterday's session link is this. This is my yesterday's session. So yes, I will share this code as well. Okay. Now let's move on to some file handling questions. So these are the various questions I have created. Okay. बहुत बेसिक सा पहले क्वेश्चन है, ये कर लेता हूँ. I'll copy it and I'll write it here. Okay, can anybody tell me what this question is saying? Why not till k plus 1? क्योंकि k जो है एज एन लाइक इंटीजर पास कर रहे हैं, दे हैव नॉट लाइक प्रोवाइडेड कि k एक इंडेक्स होगा. अगर इंडेक्स होता तो k plus 1. यस, मेक डिक्शनरी फ्रॉम द फाइल. हमारे पास एक स्टूडेंट्स डॉट सी एस वी, और इफ आई नेम इट एज मार्क्स डॉट सी एस वी, क्योंकि मेरे पास मार्क्स डॉट सी एस वी है. ठीक है, मैं फाइल को ही रीनेम कर लेता हूँ स्टूडेंट्स डॉट सी एस वी पे. तो कल वाला ही डेटा ये. ठीक है, दिस डेटा जो हमने कल काफ़ी इसके साथ वर्क किया, हमें इस डेटा का क्या करना है, हमें सी एस वी फाइल को रीड करना है एंड वी हैव टू स्टोर द डेटा इन अ डिक्शनरी. जो की है वहाँ पे नेम होने चाहिए एंड डिक्शनरी में लाइक द वैल्यूज आर द डिक्शनरीज कंटेनिंग देयर स्कोर इन ईच सब्जेक्ट. ओके, सो सैम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, दैट शुड बी समथिंग लाइक दिस. लाइक एक ये डिक्शनरी का एक एलिमेंट है, जैसे एक की है आरव एंड उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इज समथिंग लाइक दिस. इंग्लिश एंड देयर रिस्पेक्टिव मार्क्स, साइंस एंड their respective marks, maths and their respective marks, and CS their respective marks. okay, so ऐसे करके मुझे हमें इस पूरे डिक्शनरी को लाइक पूरे फाइल को रीड करके हमें एक ऐसे डिक्शनरी रिटर्न करनी है. okay, so get data and I will pass in the file name only. So this is the function and I have to return a dictionary of dictionaries. क्वेश्चन सबको क्लियर है? Is the question clear to everybody? Okay, all right. Guys, it would be like good if you all interact. So yes, हमें बस हमारे पास ये स्टूडेंट डॉट सी एस वी दी हुई है, हमें इसको रीड करना है एंड हमें जो भी नेम्स हैं, नेम्स आर यूनिक, सो हर एक नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक डिक्शनरी बनानी है एंड उसके मार्क्स हमें लिखने हैं. दैट इज मैथ, साइंस, इंग्लिश, सी एस. ओके, नाउ लेट्स गो विद द सी एस वी मॉड्यूल वे. ठीक है,
import CSV क्योंकि that is more beneficial, more easy to use and all. ठीक है. Now you guys tell me like how can I read a file. कल ही हमने देखा था to read a CSV file and all. Open file name, yes, open file name. And should I pass in any mode या ऐसे ही रहने दूँ? Okay, so while reading a file there are various modes: read mode, write mode. Okay, by default the mode is read, so I don't need to pass. Yes, you can use import for CSV module. Okay, that is completely fine, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, it is allowed. Then there is like I'm using context manager, this with statement with open file name as f. तो जो मेरी फाइल है वो f में स्टोर हो गई है. ठीक है, ओपन. ओके, ये अपने आप इट विल क्लोज द फाइल, सो मुझे ऐसे f डॉट क्लोज नहीं करना पड़ेगा इसकी हेल्प से. Now what I will do is I will simply read the data of this particular file. So okay, csv dot reader, and in the reader what I will do, I will pass in the file. Okay, so it will give me a reader object. Okay, file reader, something like that. अगर मैं लिखूँ तो okay, मुझे इसको थोड़ा सा फॉर्मेट, या so reader. Now yes, you can do in that way as well, that is up to you, just that this context manager is more safe, so इसलिए I use this only. Now reader, अब जो है if you all know, okay, if I even print it for I in for row in reader. Before moving forward, can we see the value of reader? Yes, वही मैं आपको दिखा रहा था. So reader is a object. Okay, I have to call this function get data student dot csv. ठीक है, if I run this, this reader is basically an object जो जिसमें हर एक एक रो as a list स्टोर हो रही है. Okay, so the first row is this header row, ये भी आ रही है, then the second row, then the third row, then the fourth, and then all the respective rows. Okay, are you all clear with the data? इतना सबको क्लियर है what we are getting in each row? अब मुझे ये बताओ, if I want the header, how can I get the header? Header dot csv dot header. Okay, csv dot header, there is no function like cs header. F dot read line. Yes, f dot read line you can do, that is fine. अगर मैं f dot read line करूँगा ना तो मैं first line I will read it. Okay, now if I run this, so you can see I am printing the rows only. तो rows में ना you can see मेरी first line print नहीं हो रही. If I skip it and if I just print the header, like I will write header and header, and if I run this you can see header, I have got my header here. Okay, name, math, science, English, CS. That reader is a particular object. ठीक है, either I have to convert that object into a list or something, तभी I can do the indexing or slicing. Okay, so is this clear that how I'm able to get the header? So the CSV dot reader we can use only if we import CSV, right? Yes, just that it is more useful, ये हमें पूरा अच्छे से data format करके दे रहे, so that's why I'm doing it. Now if you see we want a dictionary, so I will create a dictionary named records, an empty dictionary. इसमें I will store everything. So can you guys tell me how can I get, okay, from the header subjects मुझे चाहिए, how to get data without header? We can skip the line, like f dot read line करके we can skip it, and then we can read for row in something, for row in reader, and then print row or something, we can use the row. Okay, but हमें यहाँ पे header चाहिए. So why we need the header? We need the column names, the subject names. So मुझे subject names चाहिए. You can see this header is a string and it is separated, like it has the comma which is basically separating the column name. So can I get the column names from here, from the header? How can I get the column names? Header can be f dot read lines dot split.
Yes, comma. I can do something like this, header dot split and I will pass in comma. Okay, तो अब जो है I'll get each and every this is the column name maths, and so I'll get all these column names as an element in this list, columns list. Okay, if I print it columns, so now you can see I have this name math science English CS. अब यहाँ पे you can see one thing that backslash n आ रहा है, I can strip it. Okay, and I have the name math science English CS. तो मेरे पास subject columns आ गए and their particular subjects as well. अब मुझे ये records नाम की डिक्शनरी बनानी है. Now let's move ahead. So row पे you know the first is the name, then the respective marks. So now you guys tell me, how can I create a particular record or something like that? I'll have a like sub mark something like this. So मैं एक marks नाम की एक डिक्शनरी बनाना चाहता हूँ सबसे पहले. इस डिक्शनरी में I want these marks like in this way. English, science, maths and CS. How can I get these marks? English, if we see, English is in the, or if we follow this manner only. So maths मेरा सबसे पहले है, then we have science, then we have English, then we have CS. So how can I get the marks of maths? Yes, row of 1, and for the science, row of 2, for the English, row of 3, okay, and for the CS, row of 4. Okay, मेरे पास अब सारे marks आ गए. What about the name? How can I get the name? Yes, I have to do int, don't worry. एक एक करके I'm doing. How can I get the name? Yes, row of 0. No, header नहीं. Header पे जो है, I want the name of the student, not the exact literal name. So that is in the 0th element. Okay. So yes, I have the names, I have the marks. अब मुझे एक record बनाना है. What I will do, records name equals marks. Okay, इतना कर दिया. Now okay, now what I will do is I will simply return records, and if I print it, you can see I am getting all the records here like this way. Arav maths 25, science 33, English 25, CS 42, and Ishika, Vivan, and so on and so forth for all the records. So we have almost done the question, just that one thing is left. Can you see जो marks हैं वो string में आ रहे हैं? How can I convert them into int? Where should I do the conversion mainly? In which line number? जो मेरे marks हैं वो string में आ रहे हैं. Yes, marks ticked में I have to do. So what I will do is I'll write int here, and I will simply put in the like I will simply call the int function on that particular marks what I am getting. Okay, now if I run this, you can see मेरे पास data आ गया एक actual format में. Okay, and with this we are done with this question. Okay, is it clear to you all? See, it is just reading the data. अगर आपने इतना कर लिया तो it means जो आपका फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन आएगा 30 मार्क्स, आपने 15 मार्क्स कवर अप कर लिए. ठीक है, rest of the 15 marks will be done by the logic, whichever logic you have to do. So we have now this question. Using the data from student.csv file, we have to calculate the total score for each student across all subjects and find and print the name of student with the highest and lowest total score. कल हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत करे थे, राइट? जो जिन लोगों ने कल का सेशन अटेंड किया था उन सबको पता होगा. कल हमने ऐसे 4-5 क्वेश्चन करे थे, टोटल, एवरेज, हाईएस्ट, लोएस्ट मार्क्स एंड ऑल. हम जो है लेट्स टेक दिस पर्टिकुलर फंक्शन जो हमें डिक्शनरी के फॉर्मेट में डेटा दे रहा है. ठीक है, जो हमें सेम चीज़ नहीं करनी पड़ रही. ठीक है, मैं इसी को ही ले रहा हूँ एंड आई एम इम्पोर्टिंग द CSV हियर.
ओके ये तो रीड डेटा इतना तो सबको क्लियर होगा, है ना, मेरे पास रिकॉर्ड्स नाम की डिक्शनरी में सब कुछ आ रहा है. नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू कैलकुलेट द टोटल स्कोर and I have to print the name of the student with the highest and lowest total scores. So I'll create def highest and lowest scores, and here I will pass in the records. So now you guys tell me how can I proceed further. मुझे हाईएस्ट एंड लोवेस्ट स्कोर निकालने हैं एंड द स्टूडेंट के नेम भी, उनके नेम में मेनली कैलकुलेट द सम ऑफ ईच स्टूडेंट. यस, सो मैं क्या करूँगा, सम तो आई कैन सिंपली द सम द ऑल द थिंग्स. ओके व्हाट आई विल डू इज व्हाट वी हैवंट यूज्ड कॉल्स. यस, कॉल्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, दैट इज़ अप टू अस. ओके कॉल्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, दैट इज़ फाइन. हम चाहते तो कॉल्स को हम यहाँ भी यूज़ कर सकते थे, बट हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, सो कोई बात नहीं, हम इसको स्किप भी कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज़ अप टू अस. मेनली तो मैं आपको ये बता रहा था कि कैसे हम हाइडर वगैरह बाकी सारी चीज़ें लेंगे. सो यस, नाउ द थिंग इज वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल स्कोर फॉर ईच स्टूडेंट. सो व्हाट आई विल डू इज I will create several variables like maximum marks equal 0, minimum marks equal 0, and max name जो maximum marks का student have to sum the marks of each student and we have to print the names of the student who have the highest and the lowest marks. Okay, total marks kind of. तो मैंने यहाँ पे 4 वेरिएबल्स बना लिए. आई हैव क्रिएटेड 4 वेरिएबल्स, मैक्सिमम मार्क्स एंड रिस्पेक्टिव नेम, minimum marks and respective name. Okay, now what I will do is we will go through each record. Okay, for the records this is how like a record look like. So if I copy the record from previous question, this is how it looks. Okay, so now can anybody tell me what will be what will be the value of I, like is it Arab, is it this dictionary, or is it the whole key value pair? Key. All right, so key. Now I have the kind of a name. Okay, name equals I. Now I want the total marks. How can I get the total marks? I of subject, right, ऐसे से करके I can get the marks of each subject. But one more thing I can do, what I can do is records of I, इससे I will get this dictionary, right? Records of I, I'll get the dictionary. Am I right? And okay, is this understood? अभी तक जितना हम कर रहे हैं, with the records of I we will get this dictionary of English, Science, Maths and CS. Am I right? Is this clear? Yes. Okay, guys, just be interactive. थोड़ा सा सेशन रह गया. I hope अब इंटरनेट कुछ दिक्कत ना करे, and we will like do all the questions now. So yes, records of I से I'll get this dictionary. अब there is a function method called values in the dictionary जो हमें सारी values दे देता है. If you know this, then आपको पता होगा, right? वैल्यूज से मेरे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगे. ओके, देन आई कैन सम अप दीज वैल्यूज एंड मेरे पास टोटल मार्क्स आ गए, है ना? एम आई राइट? सो इतना सबको क्लियर Yes, होगा. sir. अभी तो नाउ ओनली बेसिक लॉजिक इज लेफ्ट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम. इफ टोटल इज ग्रेटर देन मैक्स मार्क्स, I will set max marks equals total and that max name equals I. Okay, I or name, whatever. Now tell me for the minimum, what should be the logic for the minimum? Anybody, like क्या logic होगा for the minimum? Total less Yes, than. total less than minimum marks. If total are less than minimum marks, then minimum marks equals to total
and minimum name equals name. Okay. And at the end I can simply return a tuple or list or something like that. मुझे वो करना है, मुझे So सिर्फ in this case, min marks we have to initialize it to a higher value, right? वेल नो नीड, क्योंकि हम ज़ीरो ले रहे हैं तो ज़ीरो वी कैन कंसिडर, ज़ीरो से कम किसी के मार्क्स नहीं होंगे. ओके, ज़ीरो से कम किसी के मार्क्स नहीं होंगे एंड ज़ीरो से ज़्यादा हो सकते हैं ऑब्वियसली. तो इसमें ऐसा सच कुछ है नहीं. No, for minimum marks, then we should have 100 to start with, right? फॉर मिनिमम Minimum marks. Hmm. या Maximum ओके ओके ओके. That's the point, no? So Oh yes, nobody will sorry, come sorry, in that sorry. list. Yes. Sorry. Okay, so basic thing, not 100. See, एक particular marks can the value which I have generated, it is for maximum 100. So I would take 400 because we have 4 subjects. That is fine. Okay. Sorry for this. See, मैं भी थोड़ा सा लॉजिक में रह गया. It is fine. हम जैसे जैसे करेंगे हमें उतना क्लियर होता रहेगा. Now I just have to return the name of highest and lowest. If I do return max name and min name, and if I print it, print highest and lowest, and there I will pass records. Records जो है मेरे वो आएंगे get data से. So I will call get data function and there I will pass student.csv. ठीक है. And then I should get the names, and here you can see I get the names as Diya and Manav. If we see like, आप डेटा देख लेना, आपके ऊपर है रीड करना हो तो. If I open the Diya, for Diya you can see the marks are in 3 subjects the marks are greater than 90. So इससे ज़्यादा किसी स्टूडेंट के नहीं होंगे I hope. And then the Manav, for Manav you can see all the marks are under 30. Okay. So Manav has the minimum marks and total marks, and Diya has the maximum total marks. So is this question clear? All right. Easy question था, मीडियम लेवल क्वेश्चन. आपने इतना कर लिया, आपके 30 मार्क्स कवर हो जाएंगे. ठीक है. I'll copy paste it. Question 2. Okay, we have various questions. So एक और क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा डिफरेंट. ठीक है. After that we will conclude the session. What could be edge case here? Edge case यहाँ पे फिलहाल तो कोई नहीं है. Edge case. This is a basic min max question. There can be like an edge case कि अगर एक से ज़्यादा स्टूडेंट के मैक्सिमम मार्क्स हैं, देन सारे स्टूडेंट्स के नेम प्रिंट करो, या उस स्टूडेंट का नेम प्रिंट करो जिसके सबसे पहले मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. Okay, can we do this question? So let me check the question. मेरे पास यहाँ पे है. ठीक. So the question is, sort a list of tuples by the second element of each tuple. In case of a tie, sort by the third element. Sort by the first element. All right. तो हमारे पास Just before starting, we can use lambda function to yes, sort this. yes, you are right. So this is a okay. This is a list we have. All right. So L, this is a list, we have to sort it. So I can, okay, can we use sort here? Anybody? Yes, we can use sort. So L dot sort, and there we just have to use the lambda function. Lambda आप मैनुअली भी कर सकते हो. ठीक है. सॉर्ट आपके ऊपर है, मैं जस्ट शॉर्ट पे कर रहा हूँ. इट इज़ कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल. आप जैसे करना कर लो. ठीक है. फिलहाल के लिए in the PDSA you have to use the sorting techniques. Now key equals to lambda. So here we can see, so each element will be a tuple. Okay. So key equals to lambda le. So le will store this particular tuple, that is the 0 2 0. and question क्या है, हमें जो है सेकेंड एलिमेंट के बेस पे सबसे पहले सॉर्ट करना है. सो द सेकेंड एलिमेंट इज एलिमेंट एंड okay 1. Okay, second element is in the index of 1, third element is in the index of 0, and the first element is in the index of
0, थर्ड इज इन द इंडेक्स ऑफ 2. ओके, हमें पहले फर्स्ट एलिमेंट के सॉरी सेकंड एलिमेंट के बेस पे करना है. अगर वहाँ टाई होता देन वी हैव टू सॉर्ट बाय द थर्ड एलिमेंट. सो हाउ कैन वी डू सो? सेम मैंने अपने क्वेश्चन का ही आंसर कर दिया जो मैंने पहले पूछा था. हम क्या करेंगे, टपल क्रिएट कर लेंगे एंड उस टपल के अंदर टपल लिस्ट आप कुछ भी क्रिएट कर लो. फर्स्ट हमें जिस एलिमेंट के बेस पे करना है वो, देन हमें थर्ड एलिमेंट के बेस पे करना है वो, देन हमें फर्स्ट एलिमेंट के बेस पे करना है. सो यू कैन सी sort the list of tuple by second element. If there is a tie, then sort by third element. If there is a tie, then sort by first element. Okay, then if I print L, I will get the value here, that is this. Okay, is this clear? Yeah. All right, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था. Well, this question can also come, this kind of question. So okay, एक next question कर लेते हैं. ओके, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कर लेते हैं. राइट इट हियर. ओके, सो हमारे पास ना एक डेटा है, कंपनी डेटा. ठीक है, here we have id, name, gender, region and the sales we can say in different quarters of a year, quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. okay, हमें क्या करना है, डिटरमाइन द टॉप परफॉर्मर इन ईच रीजन फॉर Q2. मतलब हमें क्वार्टर 2 के बेस पे जो है हर एक रीजन, लाइक रीजन वी हैव अहमदाबाद, वेलोर, चेन्नई, भोपाल, मुंबई, तो हर एक रीजन के लिए हमें टॉप परफॉर्मर निकालना है. ओके, एंड व्हाट इज द हाईएस्ट Q2 स्कोर. सो क्वार्टर 2 का हमें स्कोर निकालना है. सो दिस इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज क्लियर? ऑल राइट, तो फर्स्ट थिंग डेफ गेट डेटा करके मैं जो है एक फाइल नेम पास करूँगा एंड आई विल रीड द डेटा. सो अगेन आई यूज़ द CSV, इम्पोर्ट CSV. मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इस पर. ठीक है, फाइल नेम एज एफ एंड फर्स्ट आई विल रीड द f dot read line. I'll skip the header. After that I'll have the reader here, CSV dot reader f, and I will have all the data here. So records I would say, and in the records मैं क्या करूँगा, फॉर आई इन रीडर जो मेरा नेम है, नेम इज इन द दिस, तो नेम के बेस पे आई विल डू दिस. ओके, नेम आई थिंक सारे यूनिक हैं, आई एम नॉट रॉन्ग, आई होप यस. सो ओके, सो व्हाट आई विल डू इज records, okay, I will create other things as well. So namely मैं ID के बेस पे कर लेता हूँ, that would be much better. So records of I of 0 which will be the ID, and उसके respective I will store all these things in a dictionary. So name will be I of 1, gender will be I of 2, region will be I of 3, then the Q1 I of 4, then the Q2 I of 5, and then the Q3 I of 6, and then the Q4 I of 7. okay, I have this, and उसके बाद I will simply return records, and इन सबको मैं int में भी convert कर देता हूँ. all right, now if I like, I'll show you the data. Print get data and company data dot csv. ठीक है, if I run this you can see like I am having a records name की dictionary, and in this records we have the data in some this format. If I go till this, okay, sorry, I have to copy it. कॉपी. सो डेटा जो है मेरे पास कुछ ऐसे वे में आ गया है. this is the for first, and then for the second, then for the third, and
so on and so forth till for the each and every. Okay, तो यू कैन सी नेम मेरे पास आ गया, जेंडर आ गया, रीजन आ गया, एंड Q1, Q2, Q3, Q4 की सेल्स आ गई. ओके, सो ये मेरे पास डेटा आ गया. दिस इज क्लियर, लाइक मैंने बस डेटा एक्सट्रैक्ट किया, या आप लोग खुद भी कर सकते हो, बहुत बेसिक सा है. मैं ऐसा करता हूँ, आईडीज को भी इंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ. ठीक है, अब मुझे जो है, मुझे क्या करना है, इन ईच रीजन डिटरमाइन द टॉप परफॉर्मर इन ईच रीजन फॉर Q2. ओके, मतलब मुझे हर एक रीजन में जो भी Q2 की जो सेल्स हैं वो देखने की सबसे ज़्यादा किस वेंडर या किस बंदे ने सेल करी है. ओके, आई हैव टू figure out that particular name. So what I will do is, okay, I'll create a function, get region something, and I will pass in the records. And in this records, what I will have, I'll have a regions name dictionary, because हर एक region के लिए मुझे चाहिए, क्या चाहिए, मुझे name चाहिए. Okay, determine the top performer in each region based upon the highest Q2 score for each region. So मैं क्या करूँगा, इस पे थोड़ा सा डिफरेंट जाएंगे हम. व्हाट वी विल डू इज, ओके, हम ना एक एक करके एक रिकॉर्ड पे जाते हैं. सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ, आई पे क्या स्टोर होगा. इज इट दिस वन, इज इट दिस डिक्शनरी, और द होल की वैल्यू पे. ID. यस, आईडी. सो दैट इज़ द की, हमें आईडी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. ओके, व्हाट अबाउट नाउ, की वैल्यू डॉट आइटम्स. व्हाट अबाउट नाउ, what will be stored in the value, the whole dictionary or the whole key value pair or what. Yes, okay, so now what we will do is, हमें जो है हर एक रीजन के Q2 का देखना है, एंड वो देखने की कौन से परफॉर्मर ने सबसे ज़्यादा लाइक हाईएस्ट स्कोर करा है. ओके, अभी सी आई हैव आइडिया कि हाउ कैन वी अप्रोच दिस. रीजन्स नेम की ना हम एक डिक्शनरी बना सकते हैं, उसमें हम डेटा कैसे रखेंगे. जैसे मान लो एक रीजन है नेम अहमदाबाद. ओके, एंड उसका जो है हम क्या करेंगे, एक लिस्ट है, ठीक है, उसकी वैल्यू रहेगी लिस्ट. लिस्ट में सबसे पहले रहेंगे जो भी नेम्स है, जैसे मान लो विहान, अमृत एंड ऑल. ओके, सारे नेम्स रहेंगे फर्स्ट वाले टपल में. सेकंड वाले टपल में वी विल हैव द Q2 स्कोर फॉर ईच, लाइक विहान का जो Q2 स्कोर है वो, देन अमृत का जो Q2 स्कोर है, देन फॉर रिस्पेक्टिव. इसका सबको क्लियर है कि हाउ कैन वी, लाइक हाउ एम आई डूइंग दिस, द डेटा, मैं कैसे डेटा चाह रहा हूँ. उसके बाद पता है क्या, ओके, इज इट क्लियर टू यू ऑल दिस पार्ट. ओके, इसके बाद व्हाट वी विल डू, हम जो है मैक्सिमम निकाल लेंगे Q2 स्कोर के बेस पे. सो जिसका भी Q2 स्कोर सबसे ज़्यादा होगा, हम उसका नेम स्टोर कर लेंगे इस डिक्शनरी की वैल्यू पेयर में. ओके, तो उससे हमारे पास काफ़ी इजी वे में हो जाएगा सारा कुछ. सो नाउ लेट्स मूव अहेड. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे रीजन. हाउ कैन यू गेट द रीजन. डेटा आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है, आप लोग मुझे बताओ. Anybody? Okay, we have the value is this dictionary. So yes, not key, value of region. Okay, this will give us the region. And सबसे पहले I will check if region not in regions, then what I will do is region equals an empty list, or in fact an empty list, that is fine, empty list में एक बना लूँगा. ओके, और एम्प्टी लिस्ट में नहीं, मैं टपल मैं यहाँ पे लिस्ट ही बना लेता हूँ, क्योंकि बार बार वाई शुड आई कन्वर्ट. ओके, सो मेरे पास लिस्ट ऑफ लिस्ट में आ रहा है, लाइक एक नेम होगा, एक स्कोर होगा, एक नेम होगा और एक स्कोर होगा. ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया. या तो मैं चाहूँ तो एक इसकी डिक्शनरी भी बना सकता हूँ कि एक कॉरेस्पॉन्डिंग नेम एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्कोर. मैं वैसे कर लेता हूँ, डैट वुड बी मच बेटर, लाइक समथिंग लाइक दिस, विहान and its respective Q2 score, Amrit its respective Q2 score. Okay, then हम Q2 score के बेस पे we will check the maximum and हम उसको स्टोर कर लेंगे. तो मैं यहाँ पे एक empty dictionary बना लेता हूँ, and what I will do is, अब मुझे क्या करना है,
if regions not in region तो okay, sorry, regions of that particular region is as an empty dictionary. अब मुझे इस empty dictionary में ये value डालनी है. Now you guys tell me how can I store the names and other things. Regions, region, this is a dictionary. How can I store the name as a key and the respective score q2 score here. Data value name. ओके यस, तो यहाँ पे मैं एक और बनाऊंगा वैल्यू, और सॉरी वैल्यू एंड उसका नेम निकाल लूँगा, समथिंग लाइक दिस नेम. ओके, तो नेम आ गया एंड सॉरी रीजन, इसकी मैं कॉरस्पॉन्डिंग ओके डेट इज फाइन, तो मैं यहाँ पे नेम रख रहा हूँ एंड इसकी जो वैल्यू होगी पर्टिकुलर दैट विल बी वैल्यू ऑफ Q2. ओके, Q2 स्कोर की वैल्यू. सो ऐसे करके मेरे पास नेम और Q2 स्कोर Q2 के स्कोर दोनों आ गए. ओके, नाउ इफ आई लाइक रिटर्न दिस रीजन then and if I call this print get regions get data company data dot csv, मैं ऊपर वाले कमेंट कर देता हूँ. now you will see like how the data I am getting. Copy, and this is what how I am getting this data. Okay, लाइक यहाँ पे डेटा कुछ ऐसे वे में है. अहमदाबाद इज अ की, उसके रिस्पेक्टिव एक डिक्शनरी है एंड उस डिक्शनरी में क्या है, हर एक जो भी पर्सन है वो पर्सन एंड उसका Q2 स्कोर है, पर्सन का नेम एंड Q2 स्कोर. ओके, सो मेरे पास ऐसे करके है एंड दिस इज फॉर अहमदाबाद, देन फॉर वेलोर वी हैव एंड देन फॉर रिस्पेक्टिव अदर की वैल्यूज. ओके, सो इससे हमारे पास ये आ गया. इज इट क्लियर? इतना क्लियर है सबको? बाकी सबको क्लियर है? guys, you can give a thumbs up or you can in fact type in the chat. All right, so बस थोड़ा सा रह गया. what we have to do is we have to find the maximum Q2 score and जिसका भी maximum Q2 score है हमें उसका जो है नेम यहाँ पे असाइन करना है द रिस्पेक्टिव रीजन. ओके, हाउ विल वी डू दिस? हम क्या करेंगे, रीजन्स नाम की डिक्शनरी पे जाएंगे. फॉर रीजन इन रीजन्स, मैं रिटर्न हटा देता हूँ. तो रीजन्स ओके यस, सॉर्ट नहीं करेंगे हम, यहाँ से मैक्सिमम निकालेंगे. ठीक है, तो रीजन में मेरा क्या स्टोर होगा, द दिस नेम और दिस डिक्शनरी और द होल पेयर नेम, राइट? नो, नॉट वैल्यू, द नेम. ठीक है, रीजन्स इज अ डिक्शनरी. तो मुझे क्या करना है, रीजन्स जो भी मेरे पास ये डिक्शनरी है, ओके, I would name it something like this, scores equals regions of region. तो मेरा स्कोर में जो है ये पूरी डिक्शनरी आ रही है. ओके, एंड आई कैन डू डॉट आइटम्स. आइटम से मेरे पास की वैल्यू जो है एक टपल में आ जाएगा, राइट? मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा समथिंग लाइक दिस, विहान एंड 11422 एंड सोन फॉर श्रुति एंड बाकी सबके लिए. ओके, ये सबको क्लियर है? मेरे पास ये डॉट आइटम से क्या आएगा, 2852. ऑल राइट, अभी अब मुझे जो है ये स्कोर्स में से मैक्सिमम स्कोर का लाइक नेम निकालना है. ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू इज, ओके, इफ आई कॉल द मैक्स फंक्शन ऑन दिस स्कोर्स एंड उसमें ना मैं एक की पास करूंगा. व्हाट विल बी द की, लैम्डा, और जो मेरे पास एक टपल है जो एक एलिमेंट और टपल है. ठीक है, और इनफैक्ट आई वुड से पेयर. इस पेयर में मेरा नेम है एंड ये स्कोर है. मुझे ना स्कोर देखना, स्कोर मेरा सेकंड एलिमेंट है, सो आई वुड डू पेयर 2 और नॉट टू पेयर 1. ओके यस, तो मेरे पास पेयर 1 के बेस पे मेरा मैक्सिमम स्कोर मेरे पास आ जाएगा. एंड व्हाट आई वुड गेट इन रिटर्न, मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, स्कोर आएगा या नेम आएगा, मैक्सिमम वैल्यू, या मेरे पास ये पूरा पेयर आएगा. व्हाट विल आई गेट इन रिटर्न फ्रॉम दिस? नो, सी मेरे पास जो है पूरा पेयर आएगा. आई शो यू पेयर एंड दिस, इफ आई प्रिंट पेयर
नाउ यू विल सी, लाइक हियर यू कैन सी मेरे पास एक पूरा पेयर आ रहा है, दिनेश 45642। अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट वाले पे, तो ये देखो दिनेश का सबसे ज़्यादा है 45642, इससे ज़्यादा किसी का भी नहीं है। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीबडी हाउ इट इज़ वर्किंग, हाउ आई एम कंप्यूटिंग द मैक्स? या आप लोग खुद भी एक फॉर लूप लगा के कर सकते हो, आपके ऊपर है, आपको ऐसे करना है वैसे कर लो, जैसे आपको सही लग रहा है। ठीक है, नाउ आई हैव द पेयर, नाउ आई वांट द नेम फ्रॉम द पेयर, हाउ कैन आई गेट द नेम? पेयर 0, राइट। तो नेम आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, रीजन इक्वल्स टू नेम। ठीक है, मेरे पास अब नेम स्टोर हो जाएगा रीजन्स में। ओके, नाउ आई एम स्टोरिंग द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसने भी सबसे ज़्यादा Q2 में सेल्स करी हैं। ओके, एंड आई एम रिटर्निंग द रीजन्स डिक्शनरी। नाउ इफ आई रन दिस, नाउ यू विल सी अहमदाबाद में दिनेश है, वेलोर में आरव है, चेन्नई में निशा है, एंड मुंबई में राजन, भोपाल में अलीशा, दिल्ली में सिद्धार्थ। ओके, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, बट यस आई होप आप सबको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ओके, ऑल राइट, ओके, सबको क्लियर है गाइस? एक बार ही सारे थम्स अप कर। ओके, मैं दोबारा से कर लेता हूँ। सो मैंने सबसे पहले डेटा ले लिया, जो भी मेरे पास यहाँ से डेटा आ रहा था रिकॉर्ड्स में, कुछ ऐसे फॉर्मेट में डेटा है। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक, मैं ना एक रीजन्स नेम की डिक्शनरी बना रहा हूँ, जिसमें क्या है, हर एक रीजन एज अ नेम है जो की है, एंड उसके पर्टिकुलर वैल्यू में क्या है, हर एक एक बंदे का नेम है जो जो उस रीजन में है। ठीक है, एंड उस रीजन में है, उसके साथ साथ व्हाट आई एम डूइंग इज उस पर्टिकुलर रीजन, उस पर्टिकुलर नेम के साथ उसका Q2 स्कोर निकाल रहा हूँ। एंड Q2 स्कोर जो भी मेरे पास आ रहा है वो मैं उसके नेम के रिस्पेक्टिव वैल्यू में रख रहा हूँ। ठीक है, एंड उस वैल्यू को उसके बाद व्हाट आई एम डूइंग, वो मेरे पास ऐसे फिर डिक्शनरी आ रही है समथिंग लाइक दिस। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज मैं मैक्सिमम स्कोर ढूंढ रहा हूँ, लाइक डॉट आइटम्स करके मेरे पास कुछ ऐसा आ रहा है, एंड मैं देख रहा हूँ कि किसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर है। जिसका भी मैक्सिमम स्कोर है ना, वो मेरे पास पेयर आ रहा है ये इस मैक्स फंक्शन की हेल्प से, एंड उस पेयर से आई एम गेटिंग द नेम दैट इज इन द 0th एलिमेंट, एंड उस नेम को मैं वापस से उस रीजन पे असाइन कर रहा हूँ। ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग हियर। आई होप सबको क्लियर होगा अब। ऑल राइट, सो यस, दिस इज ऑल अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 9, आई विल स्टोर इट हियर, क्वेश्चन 9.py, कॉपी पेस्ट, मैं आपको इसका कोड शेयर कर दूंगा। नाउ आई थिंक दैट इज इट फॉर द सेशन। ऑल राइट, अभी वेल बहुत सारे और भी क्वेश्चन है, बट 3 हो गया है, 3 PM हो गए, 12 to 2 का था। यस, सी वी हैव 3 PDFs एक टू दीज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इसमें सारे फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 13। देन दिस PDF हैव ऑल द OPP मॉक क्वेश्चंस, ये आपके पोर्टल में भी होंगे। Then this have some extra questions. This is from the GIR and the hackathon. Okay, उनके practice hackathon के उसमें से हैं। So last question, sorry, but ये question हमने already करा हुआ है in the OPP1 revision session. Okay, उसमें I have already done this question. मैंने अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करा है रोटेट लिस्ट वाला, आप मेरा OPP1 वाला सेशन देख सकते हो, like it will be this one. ओके, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आई हैव लाइक डिड इट फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, मैंने अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करा था। ऑल राइट, तो ये तीनों PDF ना, आई विल शेयर ऑल दीज 3 PDFs, ओके, एंड दीज कोड एंड ये डेटा भी आई विल शेयर, एवरीथिंग आई विल शेयर इन लाइक ड्राइव। ओके, वो ड्राइव लिंक होगा, वो ड्राइव लिंक में मैं सब कुछ डाल दूंगा, एंड वो ड्राइव लिंक जो है आई विल पेस्ट इट इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन और समवेयर। ओके, and yes, that's it. And one more thing, if I like okay, yeah,
So I have this form. ठीक है, this is a feedback form. Like, okay, I can remove these questions. So I can change this question to OPP2. Okay, so I have this form here. Can you guys fill this feedback form, like, and the same way I will improve the sessions for the end term. Okay, end term maybe I will take a revision session, and it would be better कि आप लोग अगर इसको, if you have already filled it previously, okay, that is, I hope आपको अच्छा लगा होगा session and आपको like informative लगा होगा. Yes, okay. So अगर आप लोगों ने फॉर्म पहले फिल करा है, you can fill this again. Okay, मैंने questions थोड़े से चेंज कर दिए. And for the OPP2, I hope like आपको आपकी ऑलमोस्ट प्रैक्टिस हो गई होगी. नाउ हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग कि यू कैन at least pass the OPP2? Just like raise a hand or something. Okay, only 2. All right, 3. Okay, so 4, 5. All right. Okay, so yes. बाकी सब भी जिन जिन को अभी भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है, what you guys can do is you can watch this session again अगर आपके कुछ concepts missing हैं, या आप जो latest session है क्विज दिस रिवीजन सेशन 1, आप ये भी देख सकते हो जो सेशन मैंने कल लिया था. ओके, आई हैव कवर्ड एवरीथिंग देयर इन दैट सेशन, ऑल द कंसेप्ट्स, डिक्शनरी, फाइल हैंडलिंग, लिस्ट एंड ऑल. एंड उसके साथ साथ आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. ये सारे, ये भी क्वेश्चंस हैं, ये भी क्वेश्चंस हैं, ये भी है. यू हैव लाइक 50+ क्वेश्चंस आई थिंक. आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. एंड आज और कल भी GIR and Kanha Houses, they will conduct a hackathon. Okay, so आप वो भी अटेंड करो, hackathon अटेंड करो, एंड आपको जो है बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी फॉर द OPP. I would say like almost all of you will be at least pass in the OPP. जिन जिन लोगों को like they have the confidence to pass, I am like that much confident कि आप लोग easily 75 या 80 से ज़्यादा स्कोर कर लोगे. ओके, क्योंकि आप like most of the people are here from the very beginning of the session. Thank you for attending, and I will share the recording of this session in my YouTube channel. And as I said, like you guys can subscribe to my YouTube channel. So abhi after this session ends, yes, don't worry, you all will be passed. And I will share one more PDF also. So मैं क्या करूँगा, the drive link and this error sheet and other like things, the tips and the codes and everything, I will wrap everything in a drive link, and I will add the drive link in this feedback form. Okay, so आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा. Thank you guys. Thank you for attending the session. आपको ये वीडियो after 1 or 1.5 hour मिल जाएगी, and you can watch the recording and get everything. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you for attending and like staying till 3 hours. I hope you all like आप सबका OPP अच्छा जाए, and all the best for OPP. Make sure don't get afraid. एक एक करके क्वेश्चन को डिवाइड करके सॉल्व करना. फॉलो द स्ट्रैटेजी द सेम वे व्हाट आई हैव डिड हियर. ओके, क्वेश्चन को ब्रेक करो अच्छे से, एक एक करके आराम से छोटे छोटे पार्ट को सॉल्व करो. आउटपुट पे धीरे धीरे जाओ. ठीक है, ये नहीं कि आपको डायरेक्ट वो आउटपुट चाहिए ही चाहिए. जैसे पहले मैं डिक्शनरी पे था आउटपुट, फिर आई हैव कन्वर्टेड इनटू लिस्ट एंड देन आई हैव सॉर्टेड इट. तो स्टेप बाय स्टेप करो, आपसे सारा क्लियर हो जाएगा. ऑलराइट, सो Thank you, sir. Thank you so much. वेलकम एंड ऑल द बेस्ट गाइस फॉर OPP. अब मिलते हैं एंड टर्म के रिवीजन पे. ओके, एंड आई विल अनाउंस द रिवीजन सेशन इन द ग्रुप्स सेम वे. सो दैट्स इट. बाय गाइस. यू हैव लाइक 2 days, आराम से प्रिपेयर कर लो, कोई दिक्कत नहीं. अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन डाउट आता है, you guys can DM me. I will respond it as soon as possible. Okay, thank you. Bye guys.